Good afternoon, all students. Uh, this is uh, this is Ritesh Kachadia from the Hightech Robotic Systems Limited, and today we will discuss about career options in automobile IT industry. Means if you have done your career in automobile or mechanical engineering, whether it is a diploma or a degree, or even after PhD as well. So how to make a career in IT industry specifically as a degree holder in the mechanical or automobile sector, but I would like to make a career into the somewhere like IT profile. So till now we have an idea about only CAD or R&D kind of profile, which looks like little bit IT sector, but not other than this particular stream. So today the agenda is career option in automobile IT industry. And first of all, I hope all the students and their relatives, their family members are being safe from the COVID situation. And welcome you all in this webinar, which will give you some new streams where you can make your career. So I am going to share some presentation, and yeah, I would like to clear that this is the overall webinar. I can say it is an overview of different software which I am going to showcase you. So I am not taking very much in detail discussions about each course, but this is the overview. At least you can have an idea that this may be one of my stream where I can focus on. Later on you can dig the particular software or particular we can say application as per your convenience. So today I am going to share overview about the four new softwares which is used into the automobile industry and even in mechanical industry as well. So I am going to share some presentation on the particular subject. At any point of time, if you have any query, you can message to Mr. Vishal, and later on in the at the end of this webinar we can have a 5-minute session about Q&A answer. Okay, question and answer session. So let me share my presentation. Vishal, just please confirm that my PPT is visible to you or not. Yes, visible. Okay, thank you. So let's start from the first slide. So every this is my general introduction, self introduction, that I have a total 12 years of experience in this field, and I am a diploma in automobile from the Gandhi College in year 2004, and I passed my degree B automobile from North Maharashtra University, Jalgaon. Okay, and currently I am working as a functional consultant or a project manager into the automobile spare part business solutions. I'm leading some solutions like digital parts catalog, e-commerce website for the spare part business, which includes B2B and B2C platform, and part business mobile applications, as well as bill of material creation, exploded view creation, and some MIS dashboards, business analytics, which can be used by the industry or aftermarket team. So this is my role overview. So let's begin with the actual presentation and subject. So after 12th science or 10th, every students are into the dilemma what I should do. I should go for the diploma, engineering, which stream of engineering, or I can go directly from the management side like BBA, MBA, or I should prepare some IAS, IPS kind of further studies, or do some BSc, BEd. So
we are into the dilemma stage, means many thoughts are coming, and I'm not able to select. And the same situation after B mechanical or diploma mechanical or automobile as well, that many streams are there into my mind which are the conventional one. We can say I should go for the teaching, I should go for the sales, marketing, quality, production. These are the few names. And if I would like to do my own business, I can create my some spare part retailing, or I can go into the service industry, or even I can think of higher studies, or I should become a surveyor. So many streams are there, but still these streams are the conventional, I can say. कन्वेंशनल मीन्स सबको पता है कि हाँ इतना ही होता है, और सबका पहला फोकस इधर ही होता है कि हाँ मैं इधर जाऊंगा। और कोई बहुत थोड़ा बहुत स्मार्ट होगा तो ही विल थिंक कि मैं तो डिजाइन में जाऊंगा। थोड़ा बहुत क्या, आजकल सभी को डिजाइन ही ज्यादा पसंद है, बिकॉज इट्स अ वाइट कॉलर जॉब, एसी की जॉब, 9 to 5 जॉब। सो ऑल these parameters are there. So everyone wants to be a design engineer, but inside the design engineering, or inside as a design engineer role, what I should do, nobody knows in detail. Even we do some plant visit, but we are not focusing particular department visit. At least I, as a experience holder, I would suggest that college should at least do some visit with respect to department only, so that in-depth knowledge can come that what exactly the design department is doing, what exactly the purchase or we can say service department is doing. So you can plan accordingly. So let begins with what is my dream job criteria. सब कुछ जब स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं या कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ कुछ परसेप्शन होगा कि मुझे जो जॉब चाहिए, उस जॉब में मुझे ये मिलना चाहिए। दिस आर माय फ्यू क्राइटेरियाज व्हिच शुड मीट टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर जॉब। तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसमें कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ऐसे आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। एंड यू कैन कंपेयर द जॉब ऑफर, द पर्टिकुलर विच द रोल और द जॉब और द कंपनी विच यू आर गोइंग टू ज्वाइन, वेदर इट इज फुलफिलिंग द क्राइटेरिया और नॉट। भाई मुझे पैसा चाहिए, यहाँ से अगर डिस्कस करें तो भाई मुझे जॉब में अच्छा पैसा चाहिए। किसी की प्राइमरी कंडीशन यही हो सकती है। प्रायोरिटीज भी इसमें डिसाइड करनी है, एक तो लिस्ट बनाना है, दूसरा उसकी टॉप प्रायोरिटी सीक्वेंस डिसाइड करना है कि मुझे अपनी जॉब में क्या चाहिए। पैसा चाहिए, आगे चल के ग्रोथ चाहिए, या जॉब लोकेशन मेरा कंस्ट्रेंट है। अगर मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरी बात करूँ, तो मेरे जॉब का पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैं गुजरात से या मेरे नेटिव लोकेशन से, मैं सूरत से हूँ तो सूरत से मैं इस जॉब को हैंडल कर पाऊँ। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई मिस दिस पर्टिकुलर प्राइमरी क्राइटेरिया। एंड आज मैं गुजरात के बाहर पिछले 15 साल से हूँ, और अब रियलाइज हो रहा है कि इससे, इस करियर ऑप्शन से गुजरात में वापस आने का कोई स्कोप नहीं है। सो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो आपके अपने क्राइटेरिया, अपना सीक्वेंसिंग होना चाहिए, और फिर वो जॉब जो मिल रही है, वेदर इट इज फिटेड इनटू माय क्राइटेरिया और नॉट, ये आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। नाउ यू आर मैच्योर, नाउ यू आर ग्रेजुएट, सो यू हैव टू डिसाइड कि भाई मुझे क्या चाहिए। भाई मुझे 7 डेज की जॉब चाहिए या 9 to 5, 8 to 5, 8-9 घंटे की जॉब, 5 डेज वर्किंग, सैटरडे संडे ऑफ, वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं आजकल आईटी इंडस्ट्री में, तो वो चाहिए। या मुझे अच्छे अप्रिसिएशन मिलने चाहिए, मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि फटाफट मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगूँ, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एंड सो ऑन। या मुझे ब्रांड नेम चाहिए। किसी किसी को होता है कि भाई मुझे अच्छी मतलब चाहे कुछ भी सैलरी दे दो, लेकिन मेरे को है कि भाई मैं इन्फोसिस के साथ जॉब कर रहा हूँ, मैं मर्सिडीज के साथ जॉब कर रहा हूँ, तो भाई मुझे ब्रांड नेम चाहिए। या मुझे फेम नेम चाहिए कि भाई मुझे कभी कभी सेल्स वालों में देखा गया है कि सीधा मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट इस तरह की प्रोफाइल दिखती है। तो कार्ड पे तो मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पीछे सैलरी के नाम पे कुछ नहीं होता, सब कुछ इंसेंटिव के बेस पे चलता है। तो मेरे अपने कुछ क्राइटेरिया। हाँ, और सबसे लास्ट जो है, आजकल की समय में सबसे लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत मायने रखता है, जॉब सिक्योरिटीज, वर्क फ्रॉम होम। कि भाई कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए, लेकिन मेरी जॉब कंटिन्यू रहेगी, मेरी जॉब में पे कट नहीं होगा, या मेरी जॉब को कोई खतरा नहीं होगा।
सो इस टाइप से आप अपनी लिस्ट बना के उसको सीक्वेंस करके आपके पास जो भी ऑफर आ रही है उसको कंपेयर कर सकते हो। एक बढ़िया उदाहरण दे सकता हूँ कि करियर के स्टार्ट में जॉब को सिलेक्ट करना ये अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट करने जैसा है। एक एग्जांपल देता हूँ कि आज कोई बोले कि आज आपको इस जॉब में 10,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन आज से 5 साल के बाद अगर आप उसमें एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और एट द सेम टाइम सर्विस सेक्टर में आपको जॉब मिल रही है 15,000 की, लेकिन 5 साल के बाद आप पहुंचोगे 25,000 पे। सो कौन सा जॉब ऑप्शन अच्छा है, अभी वाला जो 10 का 15 दे रहा है, या 5 साल बाद वाला जहां पे 25,000 और 1 लाख तक का डिफरेंस है। सो इट इज योर चॉइस, यू हैव टू डिसाइड कि भाई मुझे करना क्या है। और आज जो भी ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ इट्स अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन बताया कल से मेरा करियर स्टार्ट इसमें। इसका बेनिफिट आपको 5 साल के बाद मिलेगा, जब आपको कुछ डोमेन नॉलेज आ जाएगा, जब आपको कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन नॉलेज आ जाएगा, तब जाके इस पर्टिकुलर रोल का जो आज हम बात करने वाले हैं उसका आपको एक बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, जो समय के साथ साथ और मैच्योर होते जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि नई इंडस्ट्री में नए आने वाले लोग पुराने लोगों को आसानी से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वही वही नॉलेज होता है, वही रोल होता है। सर्विस में क्या करना होता है, तो वही वही जॉब कार्ड बनाना और एडमिन एक्टिविटी वी कैन से। टेक्निकल भी साथ में मेरा ग्रो होना चाहिए, और इस तरह से ग्रो होना चाहिए कि कोई भी नई आने वाली जनरेशन मेरे नॉलेज को बीट ना कर पाए। वो मेरे से सीखे जरूर, मैं जितना भी शेयर करते जाऊंगा वो मेरे से पीछे ही रहेंगे, क्योंकि मैं उनसे आगे हूँ समय के साथ, डिग्री पास होल्डर के साथ सब कुछ। तो ऐसा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए एज अ स्टूडेंट हमने। अब फटाफट जो ऑफर आई सामने ले लिया, फिर उसमें 2 साल बिता दिए, फिर रिग्रेट करते रहे कि अरे यार बनना था तो मुझे ये, और बन गया मैं ये। कोई भी रोल हो, राइट। और सबसे उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो आपको पसंद हो। यहाँ पे उसमें नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर वो ये सब होगा लेकिन वो मुझे पसंद ही नहीं होगा, जिस दिन में मैं जिसके साथ 8-10 घंटे बिता रहा हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं वहां पे कुछ नहीं कर सकता। सो वो भी एक है कि मेरा इंटरेस्ट भी उधर होना चाहिए कुछ इनोवेटिव करने के लिए। तो लेट्स मूव ऑन। सो कई सारे जैसे शुरुआत में हमने बात की कि कई सारे एज ए इंजीनियर मुझे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं कि मैं क्वालिटी इंजीनियर बनूं, प्रोडक्शन इंजीनियर बनूं, सर्विस में चला जाऊं, परचेस में चला जाऊं, इन्वेंट्री में चला जाऊं। लेकिन इन सारे रोल को, समय थोड़ा कम है वरना ये एक इंटरैक्टिव एक्शन सेशन हो सकता था, लेकिन ये वन वे है तो आई विल ट्राई टू कवर इट एज एज मच एज पॉसिबल। तो बहुत सारे रोल हमने देखे, लेकिन उन रोल्स को अगर मेरे को कैटेगराइज करना है सीक्वेंस में, मतलब बड़ी बड़ी 3-4 कैटेगरी बना के अगर सीक्वेंस करना है, तो कुछ ये निकल के आता है कि एक रोल होता है जो R&D साइड होता है, एक रोल होता है जो प्रोडक्शन साइड होता है, कुछ रोल्स ऐसे हैं जो सेल्स में है, और कुछ रोल्स ऐसे हैं जो आफ्टर सेल्स में है, और कुछ कुछ रोल्स ऐसे भी है जिसको हम नॉन कोर सेगमेंट बोल सकते हैं। एक ऑटोमोटिव कंपनी में, एक मैकेनिकल कंपनी में ये सारे रोल्स होते हैं कि कोई बंदा डिजाइन में चला गया, कोई सिमुलेशन कर रहा है, कोई एनसिस वगैरह का सॉफ्टवेयर करके मतलब कैड में अपना कैरियर बना रहा है, व्हीकल इंटीग्रेशन है, प्रोटो डेवलपमेंट मतलब फिजिकली मैं कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उसका टेस्टिंग कर रहा हूँ, फिर चेंज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि बाद में प्रोडक्ट के बाद में आने वाला कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। उसी तरह से प्रोडक्शन में मैं जाऊँ तो परचेस मैनेजर, इन्वेंट्री मैनेजर, मास्टर डेटा मैनेजर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, प्लांट मेंटेनेंस, ये सारे रोल होते हैं। सेल्स में जाए तो मुझे कैंपेन मैनेज करना है, डिजिटल मार्केटिंग, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग वी कैन से, लॉन्च इवेंट, बड़ी बड़ी इवेंट आज ऑर्गेनाइज की जाती है तो उसका पूरा हैंडलिंग करना, आफ्टर मार्केट में डीलर डेवलपमेंट करना, डिमांड एनालिसिस करना कि कौन से प्रोडक्ट की लीड्स ज़्यादा आ रही है, और इन फ्यूचर कौन सा प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा ग्रोथ स्टेज में होगा, कौन सा डिक्लाइन हो रहा है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, किसका ज़्यादा हो रहा है, एंड सो इंटरनेशनल मार्केट में मुझे सेल्स करना है, एक्सपोर्ट बिजनेस। सो आफ्टर सेल्स में फिर मुझे अलग अलग रोल हो सकते हैं, सर्विस मार्केटिंग के भाई मुझे सर्विस वारंटी, सर्विस मार्केटिंग में कुछ जैसे स्कीम वगैरह बेचना है कि आप 1 साल का AMC ले लो, इस तरह की कुछ प्रोडक्ट को सेल्स करना,
या डीलर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट, वहाँ से कितना बिजनेस आ रहा है, बिजनेस गिर तो नहीं रहा, बिजनेस ग्रो हो रहा है, उसका ट्रैकिंग करना। फिर एक टेक्निकल पब्लिकेशंस भी एक बहुत बड़ा एक वर्टिकल है जहाँ पे मुझे सारे सर्विस मैनुअल, बुलेटिन्स, ऑपरेटर मैनुअल, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी कंटेंट को बनाना है, इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स कैटलॉग विच आई एम ऑल्सो हैंडलिंग। सो टेक्निकल पब्लिकेशंस एक बहुत बड़ा फील्ड है। फिर सर्विस ट्रेनिंग, मुझे आफ्टर मार्केट में ट्रेनिंग देनी है, जो भी आफ्टर मार्केट स्टाफ है। आज कितना तेजी से सब कुछ बदल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये वो नई नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो सबसे पहले R&D टीम अपने प्लांट वाले इंजीनियर्स को बताती है, फिर प्लांट वाले इंजीनियर्स अपने कंपनी के जोनल टीम को बताते हैं, फिर जोनल मैनेजर्स डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताते हैं। तो इस तरह से पूरा वर्क फ्लो होता है। तो ये सारे रोल में मैं कहीं ना कहीं फिट हो सकता हूँ। तो जितने भी रोल्स मैंने बताए वो सारे रोल इन 3-4 वर्टिकल्स में ही डिवाइड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये जो वर्टिकल है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, इन मतलब R&D और प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन और सेल्स, या सेल्स और आफ्टर सेल्स, इसके बीच में क्या किसी प्रकार के इंटीग्रेशन की जरूरत है? तो मतलब सवाल आप अपने आप को 1 मिनट सोचो कि हाँ, अगर है तो इसलिए है और नहीं तो इसलिए नहीं है। बट आज समय कम है तो आई विल मूव ऑन। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि यस, आपस आपस में भी इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन तो होता ही है, नो डाउट, बट इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कि मुझे कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसपे मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं मैनेज कर सकूं। सबसे बढ़िया एग्जांपल, आपने नेट बैंकिंग सारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होंगे। तो एक नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को देखो, आजकल ICICI की एड भी आ रही है कि इट इज़ योर पर्सनलाइज बैंक। मतलब एक एक बाय हैंड, बाय मोबाइल ऐप आप बैंक के सारे ट्रांजेक्शन घर पे बैठकर आप हैंडल कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, लोन डिपार्टमेंट, डीमेट अकाउंट, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश पेमेंट, ATM पिन क्रिएशन, मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स आज आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल एप्लीकेशंस पे हैंडल कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल ईरा विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी ऑलरेडी कुछ अच्छे डोमेन जैसे फाइनेंस डोमेन हो गया, तो कुछ अच्छे डोमेन ऑलरेडी इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, बट स्टिल वहां पे भी फ्रॉड तो हो रहे हैं। अभी हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी उसकी जर्नी बहुत लंबी है, अभी उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज और भी है। बट उसके लिए मुझे डोमेन नॉलेज चाहिए, जो कि मैं पहले किसी भी एरिया में लूंगा। लेकिन पहले से मेरा फोकस होना चाहिए। आज कई सारे स्टूडेंट्स कैड का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और कैड अच्छा बना भी लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि क्या ये कैड का सॉफ्टवेयर जो कंपनी बना रही है, मैं वहां जाकर कुछ ज्वाइनिंग करके मैं उस प्रोडक्ट को टेस्टिंग करूं? जैसे केटिया है, प्रोई है, क्रेयो है, एनसिस है, जो भी सॉफ्टवेयर है, कैड के कोर्सेस आप कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही है। लेकिन क्या मैं उस प्रोडक्ट का मेन पार्टिसिपेंट बन सकता हूँ? क्या उस प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए मेरे माइंड में कुछ आइडियाज है, और वो आइडियाज है तो वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ? मतलब यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर टीम है जिसको तो आप कमांड दोगे तो वो सब कुछ बना देगी, लेकिन इंडस्ट्री की ये नीड है, ये बताने वाला कोई चाहिए। तो वो रोल के ऊपर थोड़ा सा हमें फोकस करना है। उस रोल को हम बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट या फंक्शनल कंसल्टेंट। लेकिन उसके पहले मुझे उस प्रोडक्ट का मास्टर बनना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट में कितना है। कि एक बार मुझे पता चल गया कितना है और किसका किससे क्या रिलेशन है, उसके बाद ही तो मैं उसको इम्प्रूव करने का सजेशन दे पाऊंगा। अगर मुझे पता ही नहीं है तो कई बार ये होगा कि ये होना चाहिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ये ऑलरेडी है, लेकिन मुझे पता नहीं है। मतलब मुझे उस सॉफ्टवेयर के बारे में 100% आइडिया नहीं है कि ये पर्टिकुलर टैब या ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैसे हैंडल होती है। तो पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है, एंड देन वी कैन गिव अवर फीडबैक दैट वी शुड डू this kind of in some customization into the existing product, so that end user will get the benefit of this particular feature. सो यहाँ पे आपने अपनी पढ़ाई में पढ़ा होगा, देर विल बी टू कंसेप्ट, वन इज सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम
and one is decentralized or distributed database. स्लाइड पे तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, लेकिन अगर मैं बातों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है ये अपना अपना काम करे, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही ना करे, या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ना हो कि जिससे मुझे आपस में क्या हो रहा है ये ट्रांजैक्शन पता ना चले। इसके कुछ यूट्यूब्स पे वीडियो भी अवेलेबल है। मतलब आज जो मैं प्रोडक्ट्स बताने वाला हूँ, PLM, ERP, CRM, DMS, ये सारे प्लेटफॉर्म कनेक्टेड प्लेटफॉर्म है। तो ये कनेक्टेड प्लेटफॉर्म के क्या बेनिफिट्स होते हैं, या वी कैन से सेंट्रलाइज डेटाबेस के क्या बेनिफिट है, या डिसेंट्रलाइज डेटाबेस की क्या लिमिटेशन है, क्या बेनिफिट है, वो सारी चीजें हमको स्टडी करने की जरूरत है। सब अपनी अपनी जगह पे काम करते रहेंगे तो इतनी फाइल्स हो जाएगी, इतने वर्जन्स हो जाएंगे, इतने इटरेशंस हो जाएंगे कि फाइनल वर्जन कौन सा है जब वो ढूंढने बैठेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट की हम बात करते हैं सिस्टम में, जब हम सेंट्रलाइज डेटाबेस की बात करते हैं तो सारे लोग एक ही फाइल के ऊपर काम करते हैं मोस्टली। जैसे मैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट की बात करूँ, हम सबको डिज़ाइन डिपार्टमेंट बहुत पसंद है, क्या कैड कोर्सेज करके डिज़ाइन में करियर बनाना पसंद है। लेकिन अगर आप प्लांट में देखोगे तो R&D की जो टीम होती है, उसमें लेट से कोई कोई कूलिंग सिस्टम पे काम कर रहा है तो वो लाइफ टाइम कूलिंग सिस्टम पे ही काम करेगा, क्योंकि उसका नॉलेज कूलिंग सिस्टम में बढ़ता जाएगा। Then someone is working on the hydraulic system, someone is working on the engine side or exhaust system, someone is working on the transmission side। तो ये सारी अलग अलग टीम होती है जो अपना डोमेन नॉलेज और जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स है डिजाइन के, उसको गैदर करते करते वो एजुकेट होते जाती है। एंड देन ये सारे लोगों की जो छोटी छोटी असेंबली होती है, उसको एक व्हीकल इंटीग्रेशन बोल के एक टीम होती है। वो टीम इन सारे छोटी छोटी असेंबली को कनेक्ट करती है और फिर आपस में जो भी एनालिसिस होता है फर्दर एनसिस वगैरह को यूज करके, वो एनालिसिस काम में आता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं व्हीकल इंटीग्रेशन टीम का पार्ट बनूं। कैरियर मेरी किसी एक पर्टिकुलर असेंबली से शुरू होगी, लेकिन मुझे अगर आगे पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है कि इसमें कितने वेरिएंट्स है, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, तो पूरा प्रोडक्ट को हैंडल करती है व्हीकल इंटीग्रेशन टीम। तो मुझे उसका पार्ट है होना है या उसका पार्ट बनना है, ये मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे कहने की बात यह है कि इतनी सारी टीम जब काम करेगी आपस में, इवन इन कूलिंग सिस्टम ऑल्सो कभी कभी 20-20 लोग काम करते हैं, तो फिर कौन सी फाइल फाइनल फाइल है। तो ये सारा जहाँ पे मैनेज होता है, कैड के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर होता है PLM, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जो आगे चल के थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अगर PLM नहीं होता तो आपस में इतना कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल के जैसा था। मतलब पास्ट में लोग काम करते थे, लेकिन वो इतना आज आज जो ये शॉर्ट टाइम जो हुआ है किसी भी प्रोडक्ट रिलीज का, अगर हम टाइम देखें तो हर हफ्ते एक नई ऑटोमोटिव प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है, वेदर इट इज टू व्हीलर, वेदर इट इज थ्री व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल। और असेंबली वाइज देखूँ, Tier 1 ग्रुप देखूँ तो न जाने कितनी असेंबली, कितना कंसेप्ट मार्केट में आ रहा है। तो ये सारा पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ PLM, जिसमें हम डेटा को रीयूज भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा को थोड़ा बहुत एडिट करके एक नई प्रोडक्ट बनाना। मतलब ये सारे PLM के बेनिफिट्स है जो हम आगे चल के थोड़ा बहुत देखेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन में क्या होगा कि सारे यूजर्स के पास अपनी अपनी फाइल होगी। हमने देखा भी होगा, एक्सेल एक्सेल इज द बेस्ट एग्जांपल कि लेट से कोई पर्टिकुलर डेटा मुझे बनाने को बोला गया सारे स्टूडेंट्स को, तो होता क्या है कि मेरी फाइल अलग है, तेरी फाइल अलग है, सर की फाइल अलग है, सब अपने अपनी तरह से फाइल बनाते हैं। फिर जब समराइज करने की बात आती है तो पता ही नहीं चलता कि किसकी फाइल को मैं बेस फाइल मानूं। लेकिन अगर कोई एक गूगल पे रख के पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक एक्सेल शीट बना दी, जिसके राइट्स मैंने सबको दे दिए, तो एट अ टाइम अगर कोई एक बंदा खोलेगा वो कुछ भी एडिट करेगा, वो उसको सेव कर लेगा, फिर दूसरा बंदा उसको खोलेगा, वो अपना कस्टमाइजेशन जो करना है वो कर लेगा। तो ये पर्टिकुलर वे ऑफ वर्किंग आसान होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाला आसान है, लेकिन उसको मैनेज करना एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में वो मुश्किल है। लेकिन सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एज अ होल, एज अ बिगर व्यू, बिगर पिक्चर अगर मैं देखूंगा तो इट विल बी अ बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री वी कैन से।
सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो कोर फंक्शन और नॉन कोर फंक्शन के बीच में भी मुझे इंटीग्रेशन चाहिए। एग्जाम्पल हम कुछ देखेंगे। फिर इंटर फंक्शंस, मतलब जैसे यहाँ पे दिखाया है, और एक फंक्शन टू फंक्शन। इंटर फंक्शन मतलब प्रोडक्ट और सेल्स के बीच में, है ना, कि भाई मुझे प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में क्यों इंटीग्रेशन की जरूरत है। तो कि भाई मुझे जो प्रोडक्ट मार्केट में जिसकी डिमांड आ रही है, क्या वो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, या मैंने अपना बनाया हुआ रूल है, मैं उसी की तरह फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वैसे फॉलो करूंगा तो इन्वेंट्री इतनी हो जाएगी, और शायद वैसी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर कर लूंगा जिसकी डिमांड ही नहीं है, और सेल्स का कमिटमेंट टूटता जाएगा, क्योंकि सेल्स वाला बोल रहा है कि हाँ सर, हफ्ते में आपको ये प्रोडक्ट दिलवा दूंगा, और वहां पता चला कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइड मैन्युफैक्चर भी नहीं हो रहे, किसी डीलर की इन्वेंट्री में भी नहीं पड़ी हुई है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि भाई मुझे प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में इंटीग्रेशन चाहिए, प्रोडक्शन और सर्विस के बीच में भी इंटीग्रेशन चाहिए। क्योंकि एक बार प्रोडक्ट मार्केट में चली गई, उसके बाद उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस आते हैं। अगर वो चेंजेस मैं अपनी आफ्टर मार्केट टीम को इन्फॉर्म नहीं करूंगा, तो वो तो पुराना ही पार्ट उसमें फिट करता रहेगा, और वो पार्ट बार बार फेल होता रहेगा। कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके, कोई पर्टिकुलर रेडिएटर है या कोई पर्टिकुलर होस पाइप है जो बार बार फट रहा था, उसका डेटा कलेक्ट किया और फिर आर एन डी को बताया, आर एन डी ने वो चेंज किया और फिर प्रोडक्शन को बता दिया। अब न्यू प्रोडक्शन सिस्टम में तो वो चेंज हो गया, तो नई गाड़ी में नया पार्ट जा रहा है, लेकिन पुरानी गाड़ी में पुराना पार्ट फिट है। अब वो गाड़ी बार बार मेरे व्हीकल मेरे डीलरशिप पे रिपोर्ट कर रही है, और मैं पुराना ही पार्ट फिट किए जा रहा हूँ। हफ्ते में वो वापस आ जाता है कि सर फेल हो गया, और कितनी बार मैं वारंटी दूंगा, और ऊपर से कस्टमर परेशान, वो बात अलग। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और सर्विस के बीच में भी इंटीग्रेशन की जरूरत है। उसी तरह से आपस में एग्रीगेट वाइज, मतलब पीएलएम की ही मैं बात करूँ, डिजाइन इंटर, जैसे मैंने बोला कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर सिस्टम, ऐसी कई सारी ट्रांसमिशन, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, एग्रीगेट वाइज मैं बात करूँ, तो इन सब के बीच में भी मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तब जाके पीएलएम प्लेटफॉर्म का बेनिफिट मुझे मिलेगा कि भाई एक्चुअल फुल प्रोडक्ट क्या बन रही है। राइट। फिर ओईएम टू डीलर, अच्छा ये डीएमएस का कुछ बात आ गया कि मैं ओईएम हूँ, मेरे लेट से 250 डीलर है, 250 डिस्ट्रीब्यूटर है, आफ्टर मार्केट का पूरा स्टाफ है। अब कौन सा डिपार्टमेंट अच्छी सर्विस दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है, कहाँ, क्योंकि अच्छी सर्विस देगा तो डीलर को बिजनेस मिलेगा, डीलर को बिजनेस मिलेगा तो ओईएम को बिजनेस मिलेगा। इट इज अ कंप्लीट चेन। तो मुझे उस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी ट्रैक करना है, वेदर इट इज प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विस और नॉट। आज हम कभी भी बात करते हैं तो कि भाई मारुति की गाड़ी लो या हीरो की बाइक लो, क्यों? क्योंकि उसकी आफ्टर मार्केट सर्विस अच्छी है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, कभी मेरी गाड़ी को 2 3 दिन 5 दिन वर्कशॉप में रखना पड़े, ऐसी नौबत नहीं आती है। सो दिस इज द बेस्ट, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बेस्ट डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। सर्विस टू डिजाइन एंड प्रोडक्शन डेटा, कि भाई फील्ड फेलियर एनालिसिस होता है ना, कि फील्ड में कुछ प्रोडक्ट चली गई और उसमें बार बार कोई पर्टिकुलर असेंबली फेल हो रही है, तो उसका एनालिसिस करके मुझे डिजाइन टीम को बताना है कि यहाँ पे मटेरियल का फॉल्ट है या आपकी डिजाइन का फॉल्ट है, या व्हाट इज, मतलब क्वालिटी इंस्पेक्टर जो होता है उसको रूट कॉज एनालिसिस करना होता है, और फिर रूट कॉज एनालिसिस करके हो सकता है डिजाइन टीम को बताया जाए कि भाई यहाँ पे आप मटेरियल चेंज करो, या पर्टिकुलर अंदर की जो कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी है, मतलब इस तरह से ये डेटा को आप चेंज करो ताकि ये पर्टिकुलर असेंबली, ये पर्टिकुलर पाइप फेल ना हो। और फिर डिजाइन टू सर्विस, यहाँ से सर्विस टू डिजाइन और डिजाइन टू सर्विस, टू वे हो सकता है ना, कि डिजाइन ने कुछ नई असेंबली बना ली, तो उसने सर्विस टीम को बताना पड़ेगा कि हाउ टू रिपेयर दिस प्रोडक्ट, व्हाट आर ऑल रिपेयरेबल पार्ट इन दिस प्रोडक्ट, व्हाट आर ऑल सर्विसेबल पार्ट्स इन दिस प्रोडक्ट, उसकी क्या लाइफ है। जैसे इंजन के अंदर ऑयल होता है तो भाई ये 3,000 किलोमीटर पे चेंज करना पड़ेगा, या उसके अंदर स्पार्क प्लग है तो ये भाई 60,000 किलोमीटर पे चेंज करना पड़ेगा, या इतने पर्टिकुलर किलोमीटर पे उसको साफ करना है, मेंटेन करना है, रिपेयर करना है, जो भी है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन डिजाइन टीम सर्विस को बताती है, और उसी तरह से कुछ सर्विस टू डिजाइन के भी एस्पेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी है, और इसी के लिए ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। हमने पीछे देखा कि जो पूरे जो रोल्स थे, वो सारे रोल इन्हीं 4 सेक्टर में मेरे डिवाइड हो रहे थे, सेल्स, और यहाँ पे सर्विस जहाँ पे लिखा है मैंने उस वक्त वहाँ पे आफ्टर सेल्स लिखा था।
तो R&D, प्रोडक्शन, सेल्स और सर्विस और आफ्टर सेल्स। तो भाई R&D साइड कौन सी प्रोडक्ट यूज होती है, तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ज्यादातर स्टूडेंट्स को कैड के बारे में पता होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या पर्टिकुलर कुछ कैड के जो सॉफ्टवेयर है डेटा एनालिटिक्स के, एनसिस वगैरह, उतना ही पता है। लेकिन एक PLM बोल के एक पूरा बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर आपस में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, समय थोड़ा कम है इसलिए मैं बार बार घड़ी की तरफ ही देख रहा हूँ। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में हम बेसिकली इटरेशंस, रिविजन्स और एक सॉफ्ट प्रोडक्ट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने आइकॉन के फॉर्म में मैंने दिखाया है नीचे, अगर आप एक इमेज देख पा रहे हो, तो एक पूरे इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम मैनेज कर रहे हैं। मतलब जो कुछ भी है वो सॉफ्ट प्रोडक्ट है कंप्यूटर के अंदर, और उसी को हम मैनेज कर रहे हैं। दूसरा जो होता है ERP सॉल्यूशंस, जहाँ पे हम एक्चुअल प्रोडक्ट को, उसकी इन्वेंट्री को, उसके मटेरियल को, उसके वेंडर्स को, उसके सप्लायर्स को, उसकी प्राइसिंग को, उसके स्टॉक को, सबको मैनेज करते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये सारा क्राइटेरिया हम ERP प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज करते हैं। ERP के कुछ अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। ये सारी जो प्रोडक्ट है ना, वो अपने आप में मॉड्यूलर प्रोडक्ट है। तो हमने कितनी बड़ी प्रोडक्ट देखी है उस पे वो डिपेंड करता है। PLM भी मॉड्यूलर है, ERP भी मॉड्यूलर है, CRM प्रोडक्ट और DMS प्रोडक्ट भी मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर मतलब उसके अंदर कैटेगरी है। जैसे मैं DMS की बात करूँ तो DMS में सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स, ये तीनों क्राइटेरिया, तीनों वर्टिकल मैनेज होते हैं। अब मैं छोटी कंपनी हूँ, मुझे सारा, मेरा पर्टिकुलर अभी जो फोकस है वो स्पेयर्स पे है, तो मैं पहले स्पेयर्स मॉड्यूल लूंगा। उसके बाद जब मैं मैच्योर हो जाऊंगा, 2-3 साल ठीक लगेंगे, बिजनेस को बेनिफिट लगेगा, तब जाके मैं सर्विस मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करूंगा। उसी तरह से यहाँ पे ERP, CRM जो भी प्रोडक्ट दिख रही है वो सारी मॉड्यूलर प्रोडक्ट है। और एक एक बड़ी या छोटी इंडस्ट्री का यही कंसेप्ट होता है कि मैं मॉड्यूल वाइज चलूँ, पहले छोटे से शुरुआत करूँ, उस पर मेरा आफ्टर मार्केट जो भी लोग है वो ट्रेन हो जाए, फिर धीरे से एक नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करूँ, फिर धीरे से एक नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करूँ। ये पॉसिबल है। तो PLM में सॉफ्ट प्रोडक्ट, ERP में एक्चुअल प्रोडक्ट, मटेरियल, ये सारी चीजें हम मैनेज करते हैं। CRM के अंदर हम पीपल को मैनेज करते हैं, मेरे आफ्टर मार्केट, मेरे एम्प्लॉय, आफ्टर मार्केट के एम्प्लॉय, उसके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, कैंपेन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम CRM में इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसी तरह से डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे मैं अपना पूरा रिटेल मार्केट या अपनी पूरी आफ्टर मार्केट चेन को मैं मैनेज करता हूँ, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके ऊपर होने वाले जॉब कार्ड, वारंटी मैनेजमेंट, ये सारा डेटा मैं DMS के थ्रू मैनेज करता हूँ। तो ये सारी 4 प्रोडक्ट है, और इनमें से किसी एक प्रोडक्ट में एज अ स्टूडेंट मुझे अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाना है, ऐसा व्यू होना चाहिए। मतलब इसके अलावा भी आपके पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द स्ट्रीम। लेकिन इन स्ट्रीम्स के अंदर एंट्री करना आसान नहीं है, क्योंकि इन सब के कोर्स थोड़े से महंगे हैं। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो इन सारी प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं अपना करियर स्टार्ट करता हूँ किसी तरह से एज अ जूनियर इंजीनियर, हो सकता है मुझे कम पे स्केल मिले, लेकिन अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिलती है तो किसी ने मिस नहीं करनी चाहिए। और उसके अंदर होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को आप गौर से देखो और ध्यान से उसके बीच के रिलेशंस को स्टडी करो। और एक बार आपके हाथ में वो कंट्रोल आ गया कि एक अच्छी CRM प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर हो सकते हैं, या एक अच्छे DMS प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर हो सकते हैं, तो फिर डोमेन नॉलेज के बेस पे आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जा सकते हो विदाउट किसी कोर्स। क्योंकि कोर्स तो आपको ओवरव्यू देगा, वही कोर्स जो आपको सिखाएगा वही चीज आपको लाइव लाइव ट्रेनिंग मिलेगी किसी कंपनी में अगर ज्वाइन कर लेते हो। मतलब कोई कंपनी अगर आपको बोलती है कि आपको SAP के अंदर बिल ऑफ मटेरियल मैनेज करना है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो उस तरह का करियर बनाना चाहिए मुझे। अदरवाइज मैं मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल को बाहर से कोर्स करने जाऊंगा तो इट विल बी सो कॉस्टली। लेकिन एक बात साफ है कि अगर कॉस्टली है तो सामने करियर को रिवॉर्ड भी उतना मिलता है। तो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी है, किसी को लगता है कि मुझे ये कोर्स करने का क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आई विल से 100% बेनिफिट मिलेगा। बट उसमें अप्रोच भी होना चाहिए, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि सिर्फ अच्छी कॉलेज से कुछ नहीं होता, साथ में पढ़ाई भी होनी चाहिए।
तो इस कोर्स के बाद मुझे अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिले, उस तरह की एक्सपर्ट टीम के साथ काम करने का मौका मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे टैलेंटेड रिसोर्सेस की कमी है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ। तो ऑलरेडी 12:40 हो सकता है, मतलब एक दो प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करें और एक दो प्रोडक्ट थोड़ा फास्ट पेस पे चले, राइट। पीएलएम ईआरपी का तो काफ़ी कंटेंट आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा कि पीएलएम के क्या बेनिफिट्स है, पीएलएम इंडस्ट्री में कौन कौन से सॉफ्टवेयर, थोड़ा बहुत हम देखना ही शुरू कर देते हैं, लेट्स सी। तो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इसका थोड़ा सा स्टडी आपने करना होगा कि इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं। जैसे मैं बता दूं कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। और सबकी अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताऊं कि जैसे इंसान की एक लाइफ होती है, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। बचपन है, युवानी है, बुढ़ापा है, फिर उसके बीच में भी छोटे छोटे स्टेजेस है जिसको हम किशोर वय बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से जो ह्यूमन लाइफ साइकिल के कुछ स्टेजेस है, और स्टेजेस के साथ साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि बच्चे को पढ़ाई करनी है, युवान को रोजगारी करनी है, बूढ़े लोगों को, नेक्स्ट जनरेशन को पालना है, वो भी ध्यान रखना है। सो सिमिलरली प्रोडक्ट का भी ये अपना स्टेज है, और हर स्टेज की एक अपनी प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रॉपर्टीज को आप स्टडी कर सकते हो, थोड़ा सा स्टडी करोगे तो ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ स्लाइड ऐसी भी है जो आपको आसानी से नहीं मिलेगी, सो आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर साइड। तो ये स्लाइड थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप नोट डाउन करके इसको आगे स्टडी कर सकते हो। फिर अपनी डिज़ाइन की कुछ साइकिल होती है ना, कि भाई पहले डिज़ाइन होता है, फिर इंजीनियरिंग डिज़ाइन होता है, फिर पैकेजिंग होता है, फिर कार बनती है, फिर व्हीकल इंटीग्रेशन होता है, फिर एक्चुअल प्रोटोटाइपिंग बनाएंगे, फिर टेस्टिंग वैलिडेशन होगा, फिर एक्चुअल कार बन के निकलेगी। अब यहाँ तक का तो हमको पढ़ाई में पता है कि ये मेरे डिज़ाइन के स्टेजेस है। फिर यहाँ से आगे क्या, तो भाई जैसे रॉ मटेरियल से मैंने कार बना लिया, अब कार थोड़ी सी चल गई, फिर उसके 10 साल हो गए, फिर उसको ब्रेक डाउन के लिए भेज दिया, फिर उसको रिसाइकल किया गया, उसके काफी मटेरियल को। आजकल स्क्रैप पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है रिसेंटली, है ना। तो आगे चल के इंडिया में भी ऐसा समय आएगा कि सारी प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल डिसाइड हो जाएगी कि भाई कोई भी प्रोडक्ट आफ्टर मार्केट में 15 साल, टू व्हीलर है तो 20 साल या 10 साल रहेगी, उसके बाद उसको स्क्रैप किया जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रैप की भी अपनी एक लाइफ साइकिल है। तो ये सारे स्टेजेस हमको समझ के, क्योंकि आप सोचो कि इतने सारे व्हीकल है, अब कौन सा स्क्रैप हो चुका है, कौन सा पर्टिकुलर विन मार्केट में है, नहीं है, किस स्टेज पे है, तो इन सब के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जो आज मुझे आसानी से दिख नहीं रहा, लेकिन आने वाले समय में ये सॉफ्टवेयर भी दिखने लगेंगे। जैसे जैसे इसमें बिजनेस बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्लेयर इसमें इंट्रोड्यूस होते जाएंगे और एक बड़ी प्रोडक्ट निकल के आएगी। जैसे पहले ऑटो कैड था 2D बेस, फिर किसी ने सोचा कि नहीं, 2D की अपनी लिमिटेशन है, 3D का सोचो, फिर कैड प्रोडक्ट आ गई। फिर कैड में भी कितने सारे कंपटीशन हो गए, केटिया है, प्रोई है, एनसिस है, सॉलिड एज है, ये सारे प्रोडक्ट है, राइट। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे नए नए सॉफ्टवेयर आते जाएंगे। और इस सॉफ्टवेयर को कौन बनाएगा? पहले कोई डोमेन नॉलेज वाला बंदा होगा, जो इसका एक कंसेप्ट, एक स्क्रिप्ट तैयार करेगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके बाद वो किसी अच्छे सॉफ्टवेयर टीम को पकड़ेगा और उसको बोलेगा चलो बनाओ, दिस इज माई स्कोप ऑफ वर्क, लेट्स डेवलप इट। तो सॉफ्टवेयर टीम को कभी आपस में मन में आइडिया नहीं आता कि ये बना दूं, उसको गाइड करने वाला कोई ना कोई फंक्शनल कंसल्टेंट होता है। जैसे नेट बैंकिंग की बात करी, तो कोई एक बैंकिंग सेक्टर से कोई एक बंदा होगा जिसने विजुअलाइज किया होगा कि एक ही सॉफ्टवेयर पे मेरा सब कुछ मैनेज हो जाना चाहिए। अब एज अ इंडिविजुअल, एज अ सीईओ, एज अ एमडी, ये मेरा कंसेप्ट था, लेकिन मुझे सारे डिपार्टमेंट का तो नॉलेज नहीं है। फिर मैंने अपने नीचे डिपार्टमेंट वाइज एक एक हेड तैयार किया कि भाई क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को ये देखेगा, लोन डिपार्टमेंट को ये देखेगा। अब बता भाई तेरी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर टीम को कि तेरे को क्या चाहिए इस सॉफ्टवेयर में। फिर वो लोग सारा अपना अपना धीरे धीरे मॉड्यूल डेवलप कराते गए। फिर उन मॉड्यूल्स के अंदर भी आपस में कनेक्टिविटी
बनती गई कि भाई एक बार मेरा कस्टमर आईडी बन गया तो उस कस्टमर आईडी को कौन सा एटीएम दिया है, कौन सा क्रेडिट कार्ड दिया है, कौन सा कब एक्सपायर हो रहा है, कितनी लोन दी है, कौन सा इंश्योरेंस दिया है, सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। इन द सिमिलर वे इस सारी प्रोडक्ट पे मेरे अपने यूजर आईडी होंगे, मेरे अपने डेटा एक्सेस होंगे, ये सारा गवर्न हो सकता है। फिर प्रोडक्शन के अपने गेट्स होते हैं, ये गेट का नॉलेज आप ले लेना कि एक पूरी प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर होती है डिफरेंट गेट्स के थ्रू। फिर डिजाइन के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है जैसे मैंने बताया। तो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को ये टूल्स के बारे में ओवरऑल आइडिया तो है ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा डेटा एनालिसिस करना चाहिए कि मुझे किस तरह की इंडस्ट्री में जाना है और वहाँ पे कौन सा टूल चलता है। मुझे कमर्शियल में जाना है, मुझे कार इंडस्ट्री में जाना है, कार के अंदर भी मुझे इंजन डिजाइन साइड जाना है या शीट मेटल साइड जाना है। तो उसके हिसाब से कुछ ये अगर मैं देखूँ ना तो कहीं ना कहीं मैंने गूगल से सर्च करके ही सारी स्लाइड्स का यूज किया है। थोड़ा बहुत मेरे माइंड में था बट यहाँ समराइजेशन जरूरी है। तो ये सारा एक एक आप कंसेप्ट समझ लो कि दिस इज द डायरेक्शन, बाद में आप अपना रिसर्च करके अपना एक स्ट्रीम डिफाइन कर सकते हो। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप, बट हाँ मुझे ये चेक करना चाहिए कि कौन सा टूल मार्केट में चल रहा है आजकल और किस तरह की इंडस्ट्री में चल रहा है, और उसके बेस पे डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कौन सा टूल सीखना है। फिर ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के कुछ बेनिफिट्स है, पीएलएम की क्या डेफिनेशन है, पीएलएम के क्या बेनिफिट्स है, ये सारी कुछ चीज़ें थोड़ा सा समय की लिमिटेशन है इसीलिए मैं फास्ट पेस पे ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप खुद सर्च करना चाहो तो डेफिनेटली ये आपको मिल जाएगा। सो यू कैन नोट डाउन द पर्टिकुलर वी कैन से हेडर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सर्च इट, क्योंकि अभी 3 टूल और बाकी है, वी आर ऑलरेडी बिट लेट। विशाल, हेलो। Yes, it is. Yes. इज इट गोइंग ऑन द मतलब ओके ओके स्पीड और कुछ फास्ट लग रहा है? Perfectly going on. हाँ। और Perfectly. ये 1 घंटे से ज्यादा एक्सटेंड होगा या लैप्स हो जाएगा? 1:30 तक. 1:30 तक है ना? हाँ. देन इट्स फाइन, मतलब मुझे लगा 1 बजे तक ही है। सो देन इट्स फाइन, आई थिंक आधे घंटे में मैं बहुत कुछ और भी कवर कर लूंगा। सो दिस इज अवर फर्स्ट वी कैन से सॉफ्टवेयर विच वी आर गोइंग टू। सो इट इज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, पीएलएम। तो इस पे काफी कुछ मटेरियल अवेलेबल है एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट कि भाई इसका क्या बेनिफिट है। आगे पीछे जो कुछ टूल है सीआरएम डीएमएस, इस पे आसानी से डेटा अवेलेबल नहीं है, सो आई विल फोकस ऑन दोस पर्टिकुलर स्लाइड। बट यहाँ पे हमको टूल के नाम पता होते हैं, कंपनी पता होती है, लेकिन आपस में रिलेशनशिप नहीं पता होती। तो ये एक पर्टिकुलर जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है कि टीम सेंटर करके, मतलब ये सारी पीएलएम प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट पीएलएम अपने आप में एक कंसेप्ट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ये कंसेप्ट है। अलग अलग कंपनी अपना डेटा अपना टूल अलग अलग नाम से बेचती है। जैसे कैड के अंदर क्रेयो है तो वो पीटीसी का है, राइट? केटिया है तो वो डेजोल्ट का है, इस तरह से। सो यहाँ पे ये सारे नाम कभी कभी आपने सुने भी होंगे कि भाई टीम सेंटर तो वो सीमेंस की प्रोडक्ट है, विंडचिल पीटीसी की प्रोडक्ट है, इनोविया या इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी नया आया है आईडीएम, या 3ds पीएलएम, ये सारे डेजोल्ट की प्रोडक्ट है। ऑटोडेस्क का एक प्रोडक्ट है फ्यूजन लाइफ साइकिल वॉल्ट, ओरेकल का प्रोडक्ट है ओजाइल, या इन्फोर इन्फोर करके एक कंपनी है इन्फोर एलएन, तो उसका ऑप्टिवा, उसकी प्रोडक्ट को वो लोग ऑप्टिवा बोलते हैं। अरेना करके एक कंपनी है वो क्लाउड पीएलएम बोलते हैं। ये इनोवेटर आपने प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, तो अरास करके एक बड़ी कंपनी है। सो इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में है। अब इन अगर मुझे पीएलएम में करियर बनाना है, इट मीन्स कि इसमें से किसी एक टूल के ऊपर मेरी मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी इन द सेंस एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 5 साल में मैं सारे ट्रांजेक्शन को अगर समझ लेता हूँ तो फिर कभी मुझे मौका मिल सकता है कि मैं सीमेंस के साथ काम कर पाऊँ, मैं पीटीसी के साथ काम कर पाऊँ, राइट? सो ये पीएलएम की कैपेबिलिटी है। ये पर्टिकुलर फिगर आसानी से अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो डिज़ाइन का डेटा, सर्विस का डेटा, मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोडक्शन साइड मुझे डेटा पास ऑन करना होता है। पहले प्रोडक्ट सॉफ्ट में बनती है, कंप्यूटर में बनती है, फिर उसी का बिल ऑफ मटेरियल, जिसको हम इंजीनियरिंग बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं, ई बिल ऑफ मटेरियल, ई बॉम, जो आगे चल के प्रोडक्शन को जाता है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं, एम बॉम।
तो ई बॉम से एम बॉम का डेटा ड्राइव होना, ये सारा डेटा पीएलएम के अंदर पहले स्टोर होता है और फिर इसमें से जो भी डेटा हमको रीयूज करना है वो आगे चल के ईआरपी में कैरी फॉरवर्ड होता है। उसी तरह से चेंज मैनेजमेंट, तो एक बार एक प्रोडक्ट रिलीज तो हो गई, उसके अंदर बाद में मल्टीपल रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमको डिजाइन चेंजेस करने होते हैं। देयर मे बी अ रीजन ऑफ द वैल्यू इंजीनियरिंग, मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी है, या फील्ड फेल्योर एनालिसिस, या मुझे वेट कम करना है। इस तरह के अलग अलग रीजन हो सकते हैं और उस रीजन से प्रोडक्ट में कंटिन्यूअसली चेंजेस होते हैं। तो ये सारे चेंजेस पहले कैड डेटा में होंगे, फिर उसके ड्राइंग के इटरेशंस बनेंगे। आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखा है, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर इटरेशंस, रिवीजन, अपर कॉर्नर जो होती है उसमें रिवीजन्स होते हैं कि पहले एक्स डिजाइन था अब वाई डिजाइन हुआ, पहले एक्स पार्ट लग रहे थे अब वाई पार्ट लग रहे हैं। तो इसको समझना जरूरी है एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो अपर साइड में जो एक तो लोअर ब्लॉक होता है जिसमें कि भाई किसने डिजाइन बनाया, क्या असेंबली है, तो वो लोअर ब्लॉक है। लोअर ब्लॉक के जस्ट ऊपर एक बिल ऑफ मटेरियल होता है कि इस असेंबली के अंदर मैंने ये पार्ट का यूज किया गया है। और एक अपर साइड पे एक ब्लॉक होता है जिसमें रिवीजन और इटरेशन मैनेजमेंट की हिस्ट्री होती है कि पहले एक्स डिजाइन थी, फिर वाई डिजाइन हुई, तो एक्स टू वाई में क्या चेंज हुआ, वाई टू जेड में क्या चेंज हुआ, उस तरह से। तो ये सारे ट्रांजेक्शन पीएलएम में स्टोर होते हैं और फिर पीएलएम से ईआरपी को मूव ऑन होते हैं। फिर ये स्लाइड भी काफ़ी कुछ अवेलेबल ही है, आप देख लेना कि भाई कौन सी कंपनी में किस तरह का टूल यूज होता है और किस तरह का कैट डेटा यूज होता है, किस तरह का पीएलएम प्लेटफॉर्म यूज होता है। तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि टीम सेंटर, सीमेंस का जो प्रोडक्ट है टीम सेंटर, दैट विल बी अ मोस्टली यूज्ड इनटू द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। सेकंड नंबर पे विंचिल है, इनोविया भी अच्छी प्रोडक्ट है, सारी प्रोडक्ट पे काम किया है मैंने, एंड ऑल आर गुड प्रोडक्ट, बट टीम सेंटर ज़्यादा यूज होता है। तो आगे चल के मुझे अगर पीएलएम साइड करियर बनाना है तो मुझे सोचना चाहिए कि हाँ, मुझे इन तीनों में से विंचिल, इनोविया या टीम सेंटर में से सिलेक्ट करना है, तो आई विल गो टू द टीम सेंटर ओनली। सो यहाँ पे मैं ग्लोबल कंपटीटर की बात करूँ तो तीन बड़ी कंपनियां हैं और तीनों के मैंने यहाँ कुछ प्रोडक्ट लिख रखे हैं। तो एक पीटीसी कंपनी है, पैरामेट्रिक सॉल्यूशंस करके पीटीसी, एक डेजोल्ट कंपनी है और एक सीमेंस कंपनी है। पीटीसी का जो कैट टूल है उसको क्रेयो बोलते हैं और पीटीसी का जो पीएलएम है उसको विंडचिल बोलते हैं। डेजोल्ट का जो कैट टूल है उसको किटिया, और उसका जो पीएलएम टूल है उसको, और पीएलएम प्रोडक्ट जो है उसको टीम सेंटर बोलते हैं। वैसे ही कुछ एक आधी ईडीए करके और प्रोडक्ट है जो ग्राफिक्स और उसमें काम लगती है। सो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ, ये एक्स फिगर हो सकता है, करंट सिचुएशन क्या है दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई, अगर कहीं से मिल जाता है डेटा तो। बट कहने का मतलब कि डेजोल्ट 43% मार्केट शेयर, पीटीसी 22% मार्केट शेयर और सीमेंस का जो है 35% मार्केट शेयर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब 6-7% का या इतना डिफरेंस है तो मुझे कोई कंपनी, पीटीसी को यूज करने वाली कम से कम आपको 1000 कंपनी मिल जाएगी। उसी तरह से फिर पीटीसी में 1000 है तो सीमेंस में ऑब्वियस 3000 हो जाएगी। सो कोई टूल छोटा नहीं है यहाँ, परसेंटेज वाइज भले छोटा दिख रहा है लेकिन कोई भी टूल छोटा नहीं है। तो इसमें से किसी भी टूल में अगर मुझे चांस मिलता है और मुझे इस प्रेजेंटेशन के बाद लगता है कि मुझे इसमें करियर बनाना चाहिए, सो एवरी टूल इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि कंसेप्ट जानना जरूरी है। पीटीसी से मैं सीमेंस में भी जा सकता हूँ, सीमेंस में से मैं डेजोल्ट में भी जा सकता हूँ। हर प्रोडक्ट के अपने प्लस पॉइंट्स है, कुछ लिमिटेशंस है। तो जो प्लस पॉइंट है उसको दूसरी प्रोडक्ट में कैसे इंट्रोड्यूस करना, ये एज ए इंडिविजुअल स्किल है, राइट। तो यही मुझे स्टडी करना है कि प्रोडक्ट को कंपैरिजन करके एक डिसाइड करना है कि कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है, और जो बेहतर प्रोडक्ट है उसके अच्छे फीचर्स मुझे दूसरी लिमिटेड प्रोडक्ट के अंदर डालना। दिस इज व्हाट द, हम आगे बढ़ते हैं। बट यस, वो इतना आसान कॉपी पेस्ट नहीं होता, इसीलिए उसमें इंजीनियरिंग दिमाग लगता है और इसीलिए शायद हमने बेंचमार्किंग जैसा एक अच्छा वर्ड इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि कॉपी पेस्ट में तो कुछ भी हो जाता है, कर लो आसानी से, लेकिन बेंचमार्किंग इतना आसान नहीं है।
सो सिमिलरली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मुझे इनोवेशन करना वो भी आसान नहीं है. So let's move on to the our next product, that is ERP, Enterprise Resource Planning. सभी लोगों ने SAP प्रोडक्ट का नाम सुना होगा या ओरेकल प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, लेकिन उस प्रोडक्ट को एक्चुअली बोलते क्या है. जैसे यहाँ पे हो सकता है आप में से किसी इंजीनियर्स ने विंचिल या इनोविया का नाम सुना हो, लेकिन उसको PLM बोलते हैं वो पता नहीं था. इन द सिमिलर वे SAP या ओरेकल जो है ये कंपनियां हैं, और ये कंपनियां अपने आप में इतनी बड़ी हो गई है कि उनकी ERP प्रोडक्ट भी उन्हीं के ब्रांड नेम से जानी जाती है. लेकिन एक्चुअली वो जो बनाते हैं उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. तो ERP क्या है, ERP के क्या बेनिफिट्स है, ये तो एज अ स्टूडेंट मुझे पता होना ही चाहिए. PLM, ERP, और उसको अगर हम थोड़ा सा डीप में स्टडी करें तो समझ में आएगा कि भाई वहाँ पे भी अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, कि एक मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल हो गया, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, एक फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, वेंडर मैनेजमेंट हो गया, है ना, परचेस डिपार्टमेंट ये सारी एक्टिविटी करता है. तो फिर इस मॉड्यूल के अंदर डिटेल फर्दर एक्टिविटीज होती है, जैसे मटेरियल मैनेजमेंट हो गया. तो ये सारे मॉड्यूल्स है, और इस मॉड्यूल में से किसी एक मॉड्यूल में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्वाइन करने की, तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए और फिर उसमें डिटेल आउट करना चाहिए. कई बार आपने रिक्वायरमेंट्स 2-3 साल वाली रिक्वायरमेंट में आपने देखा होगा कि इफ SAP नॉलेज इज देयर इट विल बी अप्रिशिएटेड. मतलब एक एडवांटेज हो जाता है. डोमेन नॉलेज के साथ साथ सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है. मैं अपनी कंपटीशन को, मैं अपने साथ आने वाले अदर एम्प्लॉयज को बीट कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर ओपनिंग के अंदर. तो ये कुछ बेनिफिट्स और क्या क्या उसका डेफिनेशन हो सकता है या क्या शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ये हम मतलब इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू हम सीख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे भी कंसेप्ट वही है, सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम. ये सारे एम्प्लॉय कितने हैं, एम्प्लॉय का सैलरी कितना है, ग्रेड कौन सा है, कितने दिन का अटेंडेंस है, कब कब लीव ली है, पेरोल मैनेजमेंट का जो एक मॉड्यूल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. इन द सिमिलर वे मेरे पास कितनी प्रोडक्ट है, कितनी प्रोडक्ट में पास्ट में बना चुका हूँ, कितने विन विन मतलब चैसी नंबर, या कितने पर्टिकुलर SKU मैं बना चुका हूँ, कौन सा SKU कौन से कलर का है, किसके अंदर क्या बिल ऑफ मटेरियल हुआ था, किसकी कितनी कॉस्ट है, कौन से पर्टिकुलर पार्ट को मैं किस किस वेंडर से खरीद रहा हूँ, किस किस वेंडर का कब कब ऑर्डर रिसीव होने वाला है. ये सारा ट्रांजैक्शन किसी एक प्लेटफॉर्म पे अगर मैनेज होता है तो उस प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं ERP. इसी तरह से सप्लाई चेन, फाइनेंस, अलग अलग मॉड्यूल है, HR का मॉड्यूल है. तो इस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फर्दर ट्रांजैक्शन होते हैं ये हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. फिर ERP में कौन कौन सी प्रोडक्ट है, तो जैसे मैंने बोला दो बड़ी प्रोडक्ट SAP और ओरेकल, जैसे सेज ERP है, वर्कडे है, Infor-LN एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है ना, और अदर्स में कुछ अननोन प्रोडक्ट्स हैं. तो इस तरह से अगर मुझे ERP साइड अगर अपना कैरियर बनाना है तो मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ERP में कौन कौन से कंपटीटर है, और उसमें से मैं किस सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, कौन से मॉड्यूल को ज्वाइन कर रहा हूँ, कौन से मॉड्यूल की आफ्टर मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, उसको देखते हुए मैं अपना कैरियर डिसाइड कर सकता हूँ. तो ये सारी स्लाइड आपको मतलब यूट्यूब या सॉरी गूगल इमेजेस में मिल जाएगी. सो यू कैन वर्क इट आउट, यू कैन सर्च इट आउट एंड यू कैन डिसाइड योर बेस्ट कैरियर ऑप्शन. बट या डेफिनेटली आई अगेन रिपीट कि ये कुछ नॉन कन्वेंशनल स्ट्रीम है जिसका स्टूडेंट को आसानी से पता नहीं होता. लेकिन पता नहीं है इसीलिए भीड़ कम है इसीलिए शायद कोर्स महंगे भी है, और सामने रिसोर्सेज का क्रंच भी है, मतलब शॉर्टेज भी है, कि एक अच्छे एक्सपर्ट रिसोर्सेज की हमेशा ही इस तरह के फील्ड में कमी होती है. कमी इसीलिए होती है ना क्योंकि 5 साल तक मैं इस प्रोडक्ट को मैनेज करूं और सारा नॉलेज लूं, तब तक प्रोडक्ट में भी काफ़ी इनोवेशन हो जाता है. तो साथ ही साथ मुझे प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज
रखना होगा। ये एग्जैक्टली कुछ वैसा है जैसे पढ़ाई करते हैं हम फियाट की और मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है मर्सिडीज बेंज बीएमडब्ल्यू, उसकी पढ़ाई तो कभी आती ही नहीं है क्योंकि मेरा सिलेबस आउटडेटेड है। बट जब मैं कंपनी में या किसी प्रोडक्ट को ज्वाइन करता हूँ तो मैं अपने आप को इस तरह से अंडर रेटेड नहीं रख सकता। सो मुझे प्रोडक्ट के साथ साथ मतलब मैं जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ इंडस्ट्री को भी टैली करना पड़ेगा, इंडस्ट्री की स्पीड क्या है उसको समझना पड़ेगा और अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द आईटी इंडस्ट्री इज। इसीलिए आईटी इंडस्ट्री में सारे लोग बेस्ट करियर नहीं बना सकते। जो समय के साथ चलते हैं, जो समय के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, वही लोग टिकते हैं। इनफैक्ट इन कोडिंग एज वेल, कोडिंग साइड भी इतना जावा पीएचपी डॉट नेट इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हो गई है, तो जो अपने आप को अपग्रेड करता है वो कंपटीशन में अपने आप को टिका के रख सकता है। लेकिन ये सारी ऐसी कंपटीशन है कि इसका नॉलेज लेते जाओ, पिछली जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है। जो स्टडी करके आ रहा है, जो एजुकेशन फील्ड को जस्ट कंप्लीट करके आ रहा है, उसको तो इस वेबिनार के थ्रू जितना मिल रहा है वो भी बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन होगा। सो आगे चल के वो मेरी कंपटीशन में आएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। मैं जितना आगे बढ़ूंगा वो हमेशा ही पीछे रहेगा, और ऐसा हर सेक्टर के साथ नहीं होता। इसीलिए ये सारे सेक्टर थोड़े से ल्यूक्रेटिव है। फिर ये एसएपी के डिफरेंट मॉड्यूल्स है, इसको आप स्टडी करो कि कौन कौन से बेसिक मैं बता दूं कि एक सेल्स का मॉड्यूल होता है, फिर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का, मटेरियल मैनेजमेंट का जो एमएम मॉड्यूल है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो मटेरियल मास्टर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेस मैनेजमेंट, है ना। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग का एक मॉड्यूल पीपी मॉड्यूल होता है, उसमें प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड ऑर्डर। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक फाइनेंस का मॉड्यूल होता है। तो कौन से मॉड्यूल है, उसके अंदर क्या क्या सब क्लासिफिकेशन है, इसको स्टडी करके मुझे एसएपी का कौन सा मॉड्यूल ज्वाइन करना है ये डिसाइड करना चाहिए। एज एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल होता है। तो फिर इंडिविजुअल मॉड्यूल में मेरा करियर बनता है, राइट। तो देख लेना कि एसएपी क्या है, क्या कंपनी है, ईआरपी सॉल्यूशंस में कब आई, कितने कितने, मतलब ये जस्ट इंफॉर्मेशन है जो आप आसानी से नेट से निकाल सकते हो। और अभी कौन सी प्रोडक्ट इसकी चल रही है। ओवरऑल यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुझे अपने इस फील्ड में करियर कैसे बनाना है। तो अभी मैं दो टूल और लेके मेरा क्या रोल हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, उस पे भी मैं आऊँगा। लास्ट की दो स्लाइड उसी पे है। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट मतलब प्रोडक्ट, दैट इज अ सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम बोल के एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे हमने देखा पीएलएम के अंदर सॉफ्ट डेटा मैनेजमेंट होता है, सॉफ्ट प्रोडक्ट डेटा। ईआरपी के अंदर एक्चुअल प्रोडक्ट का डेटा, बिल ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें मैनेज होती है। जस्ट अ मिनट, अर्धी कलाक हजी लागશે નિરાલી, હજી વાર લાગશે બેટા, હું પછી આવીશ હો। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। सो सीआरएम बोल के एक प्रोडक्ट है। अब उसमें होता क्या है, तो सारे जो मेरे कस्टमर है उसकी कांटेक्ट डिटेल मैनेज करना, फिर कहाँ से लीड जनरेट हो रही है, किस प्रोडक्ट पे लीड जनरेट हो रही है, कहाँ से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। मतलब जो सेल्स इंजीनियर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर की विजिट करते हैं, फिर उससे उनका इंटरेस्ट जानते हैं। फिर कोई कस्टमर बोलता है हाँ प्रोडक्ट तो लेनी है लेकिन नवरात्रि के आजू बाजू, तो फिर उसको सिस्टम में ट्रैक करना जरूरी है कि इस कस्टमर को नवरात्रि के 20 दिन पहले मुझे अप्रोच करना है, बिकॉज ही कमिटेड कि भाई एक आधी प्रोडक्ट वो लेगा। सो इस तरह से मुझे अपने सारे इनपुट्स को किसी एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट करना है और फिर उसका फॉलो अप भी लेना है। आपने देखा होगा कई बार आपको बर्थडे के दिन या किसी पर्टिकुलर अच्छे दिन, आपकी एनिवर्सरी के दिन लीड मिलती है कि हाँ आप आइए, आपको आज आपको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा या आपके लिए ये स्पेशल ऑफर है, सिमिलरली। तो फिर ये सारा जो डेटा है ये किस प्लेटफॉर्म पे मैनेज होता होगा, तो ये सीआरएम प्लेटफॉर्म पे मैनेज होता है। और आजकल सीआरएम प्लेटफॉर्म जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड हो चुकी है, तो इसको कोई मैन्युअली मैनेज नहीं करता है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप बॉट,
कि आप हाई करके लिखो तो अपने आप रिवर्ट आता है कि दिस इज द सर्विस, आपको कौन सी सर्विस लेनी है। फिर आप लिखोगे कि क्रेडिट कार्ड, तो फिर क्रेडिट कार्ड के फर्दर ऑप्शंस। तो सारा सिस्टम जनरेटेड डेटा मैनेज हो रहा है, मतलब नॉन ह्यूमन, मतलब कुछ कोडिंग की गई है और वो कोडिंग अपने आप रिस्पॉन्ड कर रही है। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, आपको मैसेज आ जाएगा कि इतना इतना ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट से हुआ, या आपने ये रिक्वेस्ट की है, या आपका कुरियर यहाँ पे पहुंचा है, या आपका अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ लेते हैं तो आपका ऑर्डर का ये स्टेज है। तो ये सारा व्हाट इट इज, कस्टमर को हैप्पी रखने का एक तरीका, कि कस्टमर अवेयर हो कि हाँ कौन सी प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, उसका कहाँ पे पहुंचा है, कब, उसको मैं आसानी से ट्रैक कर पाऊँ। तो कुछ चीजें होती है जो फ्रंट एंड पे कस्टमर को अवेलेबल होती है, और कुछ चीजें होती है जो बैक एंड पे फर्दर एनालिसिस के लिए होती है, कि अगर मैं कुरियर एजेंसी से हूँ तो कहाँ के कुरियर सबसे ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, कहाँ का वॉल्यूम ज्यादा है। जहाँ का वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे मैं थोड़ी सी प्राइस कम करके मैं अपनी कंपटीशन को बीट कर सकता हूँ। या किसी पर्टिकुलर निश एरिया में मैं अगर डिलीवरी दे रहा हूँ तो मुझे अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। वहां पे मैं 50 रुपए ज्यादा भी बढ़ाऊंगा तो वहां पे कोई कंपटीशन मौजूद नहीं है, तो कस्टमर को मेरे थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ डिसीजन मेकिंग मैं अपने सेल्स डेटा को ट्रैक करके कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, सेल्स एनालिटिक्स, सेल्स डेटा, तो ये सारे डेटा को यूटिलाइज करके मैं अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मैं अपनी डिलीवरी स्ट्रेटेजी, मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूटर नया क्रिएट करना है। लेट से अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एमजी मोटर्स नया नया प्लेयर है, गुजरात में आया। अब उसको ऐसा तो सीधा तो है नहीं कि पान इंडिया हर जगह पे उसने अपनी डीलरशिप क्रिएट कर दी। तो उसको ऑर्डर कहाँ से रिसीव हो रहे थे, मुंबई से, दिल्ली से, अच्छी बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी से उसको ज्यादा ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। तो जहाँ ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं उस सेगमेंट में, उस पिन एरिया में मुझे एक अपना डीलरशिप क्रिएट करना चाहिए। फिर वो व्हीकल कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कौन कौन सी डीलरशिप पे रिपोर्ट कर रहे हैं, उस डेटा का एनालिसिस करके मैं सोच सकता हूँ कि भाई ये पर्टिकुलर दिल्ली टू मुंबई या मुंबई टू पुणे का जो रीजन है, इसमें ज़्यादा डेटा, मतलब एमजी के व्हीकल्स ज़्यादा मूव ऑन हो रहे हैं, तो मुंबई पुणे के बीच में इन बिटवीन कहीं पे लोनावला के आसपास मेरा एक डीलरशिप होना चाहिए। सो इस तरह का डिसीजन मेकिंग एक सीआरएम प्रोडक्ट से पॉसिबल है। लग रहा है ना काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इट्स नॉट, बिकॉज इस सेक्टर में जो आता है ना सबको यही लगता है कि इट्स जस्ट डेटा मैनेजमेंट टूल, बट इट्स नॉट जस्ट डेटा मैनेजमेंट टूल। उसका एमआईएस रिपोर्ट बना के, उसका एनालिटिक्स बना के, उसका बिजनेस इंटेलिजेंस आउटकम निकाल के कुछ क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं, जो कि बिजनेस को बहुत बड़ा बेनिफिट दे जाते हैं। कल ही मैं विशाल से बात कर रहा था, पीएलएम साइड एक एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल है, जस्ट अ मिनट, ऑलरेडी 1 और 2 हो गया। सो एक बढ़िया एग्जांपल है कि पीएलएम साइड क्या होता है, रिलीज डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। लेट्स से टाटा और आइशर, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्ट। सो टाटा ने कुछ प्रोडक्ट दिसंबर में रिलीज करनी है। अब कंपटीशन है तो आइशर को कहीं ना कहीं आइडिया होता ही है कि इस तरह की प्रोडक्ट पे हम भी काम कर रहे हैं, टाटा भी काम कर रहा है, लेकिन टाटा उसको दिसंबर में लॉन्च करने वाला है। तो एज अ आइशर मैं कोशिश करूंगा कि मैं 15 नवंबर को ही लॉन्च कर दूं। तो अब 15 नवंबर को लॉन्च करना है तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाते बढ़ाते किसी तरह से मैंने नवंबर की डेडलाइन अचीव कर ली, और अपना प्रोडक्ट जो एक वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम था, वो मैंने बेच भी दिया। लेकिन एक बार एक एक नॉर्मल स्टेज आ गया, पीपल अवेयरनेस आ गई, फिर पता चला कि टाटा की प्रोडक्ट 5 लाख में बिक रही है, आइशर की प्रोडक्ट 6.5 लाख में बिक रही है। अब मुझे एज अ आइशर मुझे अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी है, तो क्या करना है? तो भाई मैंने पूरे डिपार्टमेंट को बोला कि अब वैल्यू इंजीनियरिंग करो। किसी तरह से हमने रिलीज डेट को तो मैनेज कर लिया, लेकिन अब कंपटीशन हमको अच्छी फाइट दे रही है, तो मुझे अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी है। सो लेट्स थॉट कि इसमें क्या इनोवेटिव कर सकते हैं जिससे हम अपनी प्रोडक्ट को, अपना कॉस्ट कम कर सकें। तो डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स ने सोचा, अलग अलग डिपार्टमेंट में सोचा। उसमें से एक डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि जो व्हील रिम है, जो आज 1 किलो 200 ग्राम की है, उसको अगर मैं 1 किलो 100 ग्राम की भी कर देता हूँ तो प्रोडक्ट पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी,
और मटेरियल और सबको चेक करते हुए ये डिसीजन लिया है कि इसमें 100 ग्राम कम कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर हमको लगता है 100 ग्राम तो बचाया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर उस 100 ग्राम को मैं पर डे जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे उससे मल्टीप्लाई करूँ और पर डे वॉल्यूम को पर ईयर के वॉल्यूम से अगर कंपीट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ और डिसाइड करूँ, डेटा चेक करूँ, तो जो एक हमारी एनुअल मीटिंग हो रही थी उसमें उस टीम ने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ व्हील रिम के ऊपर 100 ग्राम कम करने से हमने साल में 3.5 करोड़ रुपए आयशर के बचा लिए। सो दिस इज हाउ द बिजनेस डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, राइट। तो इस तरह से सोचना है। आई एम नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ डेटा मैनेजमेंट, और एज अ इंजीनियर आई एम नॉट जस्ट डूइंग डेटा मेंटेनेंस और डेटा क्रिएशन, डेटा मैनेजमेंट। उस डेटा का बिजनेस को कैसे बेनिफिट मिलेगा उस एंगल पे जब मैं सोचता हूँ तब जाके 5 साल के बाद मैं एक वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ इंडस्ट्री के अंदर। सो थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। सिर्फ जॉब ज्वाइन कर लेनी है, भाई आ गए चलो 15-20 हज़ार का ट्रांजेक्शन शुरू हो गया, ये मेंटालिटी होगी तो सरवाइव तो कर लोगे लेकिन compete नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जनरेशन आएगी आपको बीट करके चली जाएगी, देन यू विल रियलाइज के बीजेपी सो एंड सो। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया, बट हम फरियाद करते रहेंगे कि भाई इंजीनियर हूँ फिर भी बेरोजगार हूँ। इंजीनियर की सोच अलग होनी चाहिए और वो सोच डिपेंड करेगी जब आप बाहर निकलोगे। बाहर के एनवायरनमेंट में कभी दब मत जाना, क्योंकि 80% इंजीनियर ऐसे है कि जो चल रहा है चलने दे भाई, आराम से जीने दे। सैलरी ज़्यादा लगनी चाहिए, काम कम होना चाहिए, हमेशा सैलरी ज़्यादा लगनी। ऐसी मेंटालिटी से बाहर मत आना, वरना आपको भी नुकसान है, देश को भी नुकसान है। आप तो अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़े हो तो आपका अप्रोच अलग होना चाहिए, सबका ही होना चाहिए, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, but you should be a real engineer. So I wish all the best, but let's move on to the next slide. थोड़ा इंस्पिरेशनल, थोड़ा नॉलेज, सब कुछ साथ में चलेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगेन आप इसको सारा चीज़ को चेक कर सकते हो। 4 टूल नोट कर लो जस्ट, PLM, ERP, CRM, DMS। फिर उसका इंडिविजुअल का क्या डेफिनेशन है, क्या बेनिफिट्स है, क्या लिमिटेशंस है, और फिर अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करो कि मुझे सर्विस में अच्छा लगता है, डिज़ाइन में अच्छा लगता है। ये 4 टूल है जो आपकी ज़िंदगी, मतलब थोड़ा सी नॉन कन्वेंशनल एरिया में अगर जाना है तो आपकी ज़िंदगी बना सकता है, राइट। सो बाकी बेनिफिट्स है वो आपको मिल जाएंगे, मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। बट क्या होता है, अवेयरनेस ही नहीं होती है, 3-4 साल के बाद पता चलता है, तब तक तो मैं ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर डोमेन को ज्वाइन कर चुका हूँ। सो मुझे आसानी से पता नहीं चलता। तो यहाँ पे एक एक आज मैं आपको लोगों को एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एंगल से जरा सोचिए, और एक बार सोच शुरू हो गई तो हो सकता है इसके अलावा भी कुछ अच्छे टूल्स हो जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो, तो उसके बारे में भी चेक कीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वन ऑफ द बिगेस्ट वी कैन से फ्यूचर ट्रेंड। तो ईवी सेगमेंट में मैं क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर सोच सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ईवी का क्या बिजनेस प्रोसेस फ्लो रहेगा, है ना। बट ये अगेन इसी में आ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का CRM या DMS का वर्क फ्लो अलग रहेगा, ट्रैक्टर इंडस्ट्री का, कमर्शियल व्हीकल का, टू व्हीलर का, सबका अलग होता है, Tier 1 का और OEM का भी अलग होता है। सो ये टूल है, बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है ये सारे ही, मतलब इसका एक बेस नॉलेज जो है उसके ऊपर इंडस्ट्री नॉलेज, मतलब इसी को डोमेन नॉलेज बोलते हैं कि एक हो गया बेसिक नॉलेज जो को हर जगह पे सेम रूल अप्लाई करेगा। उसके ऊपर का जो नॉलेज है डोमेन नॉलेज, कि भाई मुझे टू व्हीलर बेचना है तो वहां पे कौन सा इंसेंटिव स्कीम काम करेगा, या मुझे कमर्शियल व्हीकल बेचना है तो मुझे किस तरह की स्कीम काम करेगी, कौन से फेस्टिवल मुझे काम में आएंगे, राइट। माइनिंग इंडस्ट्री में मुझे अगर मेरा हाईवा बेचना है, टिपर वाला ट्रक बेचना है, तो किस किस सेगमेंट को, किस किस डीलर को या किस तरह के कस्टमर को मैं अप्रोच करूंगा। तो उस एस्पेक्ट से सोचेंगे तो सेल्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
सेल्स ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जाके बेच के आ जाओ, राइट टारगेटिंग होगा तब जाके मेरी वॉल्यूम्स, मेरे लीड्स बढ़ेंगे। तो ये सारे टूल, इसके पीछे जो डेटा एनालिटिक्स होता है, ये सारे टूल आपको हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में कि किस तरह का प्रोडक्ट का डिमांड है। अगर मैं अभी इस सेगमेंट, इस कोविड सिचुएशन में बात करूं, तो कमर्शियल व्हीकल बिल्कुल टूटा हुआ है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल को कौन लेता है? जिसको लोन की बार बार जरूरत होती है, लोन पे सब कुछ चलता है। तो अभी लोन देने वाले इतने रिस्ट्रिक्टेड हो गए कि भाई डिफॉल्ट ज्यादा हो रहे हैं, कस्टमर पेमेंट कर नहीं पा रहा, तो इसके चलते आसानी से लोन मिलती नहीं है, और ऊपर से सामने धंधा भी नहीं है। स्कूल बसेस बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। जो बस सेगमेंट एसएमएल इसूजू का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल कम है। आइशर भी काफी कुछ बस सेगमेंट में लीडर है, तो इनके वॉल्यूम्स कम है। स्कूल ही बंद है, सर्विस नहीं मिल रही है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट घर पे बैठे हुए हैं, तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट भर नहीं रहे हैं। आपने बीच में देखा भी होगा, अगर गुजरात से बिलोंग करते हो तो देखा होगा, पटेल ट्रैवल्स ने अपनी 200 गाड़ी बेच दी। सो दिस इज द मैट्रिक्स विच डिसाइड्स कि ये इंडस्ट्री चलेगी, नियर बाई टाइम में चलेगी या नहीं चलेगी। सो ये सारी कुछ चीजें हमको खबरों के माध्यम से मिलती है, कुछ चीजें मुझे डेटा के माध्यम से मिलती है। अगर मैं ARAI का कुछ सेल्स डेटा चेक करूँ कि आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स ज्वाइन करते होंगे, डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ते होंगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा कौन सा टू व्हीलर अच्छा कर रहा है, हीरो अच्छा कर रहा है या बजाज अच्छा कर रहा है। हीरो अच्छा कर रहा है तो हीरो का कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा बिक रहा है। या अगर मैं सेगमेंट वाइज बात करूं तो स्कूटर सेगमेंट में होंडा इज द लीडर। तो उस तरह का डेटा एनालिटिक्स कहाँ से निकलेगा? इस तरह के प्लेटफॉर्म से निकलेगा, जो कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता, राइट। सो दिस इज द टूल रिगार्डिंग द CRM, अपने पीपल और सेल्स से रिलेटेड होने वाली लीड्स को जो ट्रैक करता हो। ये भी कुछ स्लाइड है कि हर टूल इवॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि वन टाइम में पूरा सिक्स मार दिया। धीरे धीरे 1 रन 2 रन फिर वो छक्का लगाने के काबिल होता है। तो एग्जैक्टली अगर आपके माइंड में एज अ इंजीनियर, एज अ गुड इंजीनियर, अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टूल है, और अगर आप अपना एज अ एंटरप्रेन्योर अगर आपको शुरू करना है, तो आप भी अपना टूल बना सकते हो। और उस टूल का फर्स्ट फेज आप डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स मिलके डिफाइन करो कि ये स्कोप ऑफ वर्क बना के इसमें ये ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, और फिर जाके किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बताओगे तो फिर वो अपना गाइडेंस देगा, फिर दूसरा इंडस्ट्री वाला अपना गाइडेंस देगा। ऐसे करते करते आपका भी टूल एक मेच्योर प्रोडक्ट की तरह बिहेव करने लगेगा 5-7 साल के बाद। तो अगर आपके माइंड में किसी भी सेक्टर को लेकर, किसी भी डोमेन को लेकर अगर कोई टूल है, कोई कोई कंसेप्ट डिजाइन है कि ऐसा ऐसा इसमें होना चाहिए, तो यू कैन गेट इन टच विथ सम कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसको जावा या PHP या .NET साइट की प्रोडक्ट कोडिंग करने आता हो। आप अपना स्कोप ऑफ वर्क बनाइए कि मुझे इस प्रोडक्ट में ये चाहिए, ये स्लाइड है, इस स्लाइड पे ये फीचर होने चाहिए, और उस फीचर्स को देख के आप अपनी सॉफ्टवेयर टीम को बताओ। फिर वो बनाएगी, डेवलप करेगी, आप उसको टेस्ट करो, और फिर किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को जाके दिखाओ कि भाई ये प्रोडक्ट है, वेदर यू वुड लाइक टू गो। तो वो बोलेगा हाँ, इसमें इतने इतने ट्रांजेक्शन डाल दो, फिर ये और अच्छा हो जाएगा। सो इन द सिमिलर वे, अगर आपको एज एंटरप्रेन्योर भी स्टार्ट करना है, देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट इट। अगर आपके पास अच्छा कंसेप्ट है तो डेफिनेटली यू कैन गो इट। ये सारी स्लाइड आपको मिल जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू सम अनदर टूल, दैट इज अ डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल में बोलूँ कि मेरी आफ्टर मार्केट में जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका प्रॉफिट अगर होगा तो ही एज अ OEM मेरा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए मुझे उन लोगों को ट्रैक करना जरूरी है। अब ट्रैकिंग में क्या क्या आ गया कि कौन सा बंदा कितना, किस किस बंदे के यहाँ कितना कितना रिपेयरिंग एक्टिविटी हो रही है, फिर वो कितना स्पेयर बेच रहा है, कितना लुब्रिकेशन बेच रहा है, कितने टायर्स बेच रहा है, कितनी बैटरी बेच रहा है। तो जॉब कार्ड के अंदर जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, उस डेटा का फर्दर एनालिसिस करके मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो भाई मेरे सेल्स, मतलब प्रोडक्ट का सेल्स डेटा मैं मैनेज कर सकता हूँ। अब अच्छी सर्विस देने के लिए हर डीलरशिप पे हर कंपोनेंट का होना जरूरी है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, व्हीकल मैनेजमेंट, कि भाई स्टॉक आउट नहीं हो जाना चाहिए, कस्टमर जो ऑर्डर करे उसका आसानी से मैं डिलीवरी कर पाऊँ।
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, के भाई क्रेडिट में भी काफ़ी धंधा होता है कमर्शियल व्हीकल में, है ना, कि उधारी में जो धंधा है तो किससे कब कितना कलेक्ट करना है, वसूली कब करनी है। तो ये सारी चीज़ें, रिपोर्ट, डिफरेंट टाइप के कस्टमाइज रिपोर्ट निकालना कि हाँ चलो आज 15 तारीख हो गई तो आज मुझे एज अ कलेक्शन इंजीनियर मुझे किस किस को विजिट करना है, तो सिस्टम से एक रिपोर्ट निकलना चाहिए कि इतने इतने लोगों की इतनी इतनी अमाउंट ड्यू है, तो फटाफट एक रिपोर्ट निकालो और एक इंजीनियर को भेज दो कलेक्ट करने के लिए। उसी तरह से डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना, हिस्टोरिकल जॉब कार्ड्स वगैरह मैनेज करना, किसको कब मैंने वारंटी दी, क्या दी, जब वारंटी दी तब क्या डिसीजन लिया था, कितने किलोमीटर पे वारंटी दी थी, डिसीजन मेरा एज अ डीलरशिप मेरा डिसीजन सही था, क्योंकि कई बार लोग पैसा देके डीलरशिप को बोलते हैं यार वारंटी पास कर दे तू, अब कंपनी से पास करवा लेना। तो कंपनी के पास जब ये डेटा पहुंचता है तो उस डेटा का फर्दर एनालिसिस होता है वारंटी, क्योंकि कस्टमर को तो फटाफट वारंटी देके हम पास ऑन कर देते हैं। अब जो मटेरियल कलेक्ट हुआ वो मटेरियल मैं ओईएम को भेजता हूँ, फिर ओईएम के यहाँ एक क्वालिटी टीम होती है जो कि उस डेटा को चेक करती है कि कस्टमर ने क्या रीजन दिया था, डीलरशिप ने क्या रीजन दिया वारंटी देने का, और फिर क्या सच में ये रीजन हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फेल्योर पैटर्न को देखते हुए, क्या ये लग रहा है कि भाई ये क्रैक हुआ है या हाथ से क्रैक किया गया है, या क्रैक नहीं है ये तो ड्राइवर हैबिट्स की वजह से फेल्योर हुआ है। तो ये सारा डेटा को देखकर मैं डीलरशिप को डेबिट भी कर सकता हूँ। उसने तो क्रेडिट करके कस्टमर को भेज दिया, लेकिन मैंने डीलर को डेबिट नोट दे दी। तो इस तरह से सारा डेटा जो ये सारा मतलब इट इज अ ह्यूज सिस्टम, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी मैनेज ओवर डीएमएस प्लेटफॉर्म। क्या क्या होता है, तो भाई डीएमएस में कॉल मैनेजमेंट, किसको किसको कब कब सर्विस की भी कॉल आती है कि सर आपकी सर्विस ड्यू हो गई है, तीसरी सर्विस ड्यू हो गई है, चौथी सर्विस ड्यू हो गई है, तो उस तरह का कॉल मैनेजमेंट। उसी पे टेक्निकल मैनुअल्स भी होते हैं, स्पेयर पार्ट्स कैटलॉग भी होते हैं कि ये प्रोडक्ट को रिपेयर करना है तो ये बिल ऑफ मटेरियल, ये सर्विसेबल पार्ट्स है, ये पार्ट नंबर है, इसकी इतनी क्वांटिटी चाहिए होगी, या ये रिपेयरिंग मेथड है, या तो उसको लिखने वाला भी एक रोल होता है। जो ये ऊपर टीआईएस जो है वो दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, ये जो मैनुअल्स और ई कैटलॉग है। सो उसी तरह से डीएमएस में सेल्स, स्पेयर्स और सर्विस, ये दोनों सेल्स का पार्ट है, सीआरएम और सेल्स। फोरकास्टिंग करना है, प्रोक्योरमेंट करना है, मटेरियल रिसीव नोट करनी है, डीलरशिप के पास जब जब मटेरियल रिसीव होता है तो उसको मुझे रिकॉर्ड करना है, ताकि ओईएम को पता चले कि ये जो डिस्पैच हुआ है वो उसको आसानी से रिसीव हो गया। रिसीव होने के टाइम में क्या कंडीशन थी, अच्छी चीज़ थी या डैमेज थी, डैमेज थी तो वापस फिर ओईएम को डेबिट करना है। सो ये सारे ट्रांजेक्शन्स मुझे रिकॉर्ड करने हैं। तो उसी तरह से स्पेयर्स के कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सर्विस के कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, जॉब कार्ड, वारंटी, फ्री सर्विस देना, क्लेम्स देना, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, वारंटी, मतलब ये सब जब आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करोगे तब आपको धीरे धीरे सब पता चलने लगेगा। यहाँ पे मैं आज आपको एक कंसेप्ट देने के लिए हूँ कि आप अपनी सिर्फ जॉब को ऊपर ऊपर से मत करना, उसकी डिटेलिंग को समझना, और खास करके जो जो सॉफ्टवेयर उसमें यूज हो रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की डिजाइन को, यूजर इंटरफेस को आप समझना, उसके आपस में क्या लॉजिक्स है उसको समझना, तब जाके आप इस फील्ड में आगे करियर बना सकते हो, राइट। सो ये कुछ रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, सेल्स के अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स निकलते हैं, सर्विस के अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स निकलते हैं, स्पेयर्स के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट कि भाई कितना स्पेयर्स मैंने कितनी क्वांटिटी में बेचा और मेरी ओईएम की क्या कॉस्ट थी, डीलर को मैंने कितने में बेचा, या डीलर को देखना है कि मुझे कितने में बेनिफिट हुआ ये स्पेयर्स बेचने से, तो आगे मैं डिसीजन ले पाऊँ कि सच में मुझे इसकी इन्वेंट्री रखनी है या नहीं, एंड सो ऑन। आप देख सकते हो काफ़ी कुछ इसमें रिकॉर्डेड है। अब सवाल आता है कि सर आपने ये सब बता तो दिया, लेकिन इसमें करियर में बनाऊं कैसे, या मुझे तो अभी भी ये सब टूल जो है ना इट लुक्स लाइक अ आईटी इंडस्ट्री, अभी भी मुझे तो फिटमेंट नहीं बैठ रहा कि एज अ मैकेनिकल, एज अ ऑटोमोबाइल इंजीनियर मैं इसमें कैसे फिट हो पाऊंगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जैसे डिजाइन का एक लाइफ साइकिल होता है वैसे सॉफ्टवेयर का अगर लाइफ साइकिल देखो तो कुछ ये 6 स्टेजेस होते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर मैं किसी ओईएम के पास जाके रिक्वायरमेंट चेक करता हूँ कि सर आपको इस टूल में क्या क्या चाहिए, फिर मैं चेक करता हूँ कि वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट, तो फिजिबिलिटी स्टडी। फिर ये जो फेज 3 है, फेज 4 है,
ये दोनों एक्चुअली सॉफ्टवेयर टीम करेगी जिसको कोडिंग आता है। ले और छठा स्टेप जो डिप्लॉयमेंट है। तो 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर ये जो स्टेप्स है, ये एक्चुअली जो कोडिंग साइड के जो लोग हैं वो करेंगे। लेकिन एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो बेशक कर सकता हूँ, और मैं ही करूंगा। क्या सॉफ्टवेयर वाले को जाके डोमेन नॉलेज थोड़ी ना होगा? वो तो जितना बोलेगा उतना ही करके देगा। लेकिन एक्चुअल रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या हुई कि कस्टमर ने 5 पॉइंट बताए, एज अ एक्सपीरियंस एज अ डोमेन एक्सपर्ट मैंने उसमें 5 पॉइंट ऐड किए, और कस्टमर को बोला कि ये 10 पॉइंट का सर मैं सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ। जब तक मैंने 10 पॉइंट बना लिए तब तक 5 पॉइंट और मेरे माइंड में नए आ गए। उसी टूल को लेकर 15 फीचर्स को लेकर मैं दूसरे वेंडर के यहाँ गया। उसका जो सीनियर मैनेजर था, उसका एचओडी था, उसने मुझे और 5 फीचर बताए। वही 5 फीचर लेके मतलब मैं उस प्रोडक्ट को धीरे 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 बड़ा करते गया। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, अच्छी रिक्वायरमेंट एनालिसिस कौन कर सकता है? जो डोमेन का बंदा है वही कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम देखो नीचे तो क्या क्या रोल होते हैं। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है। तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता हूँ। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में देखा भी होगा कि यहाँ पे मैं ही प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। साथ ही साथ मुझे बिजनेस एनालिस्ट भी बनना है कि भाई सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या क्या इनपुट देगा। उतने इनपुट क्या सफिशिएंट है एक टूल बनाने के लिए, या उस मुझे कुछ और भी टूल और भी डेटा लगेगा। और वो जो और भी डेटा लगेगा उसको मैं बोलता हूँ गैप एनालिसिस। क्या आपके पास एक्स है, टूल के अंदर आप वाई एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन एक्स टू वाई को पहुंचने के लिए आपको बीच में इतना इतना डेटा और जरूरी होगा। तो वो डेटा सर आप अरेंज कीजिए या मैं अरेंज करता हूँ। तो यही चीजें होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, फिजिबिलिटी स्टडी में, कि क्या ये बन पाएगा। अब मैकेनिकली मैं कुछ सोच सकता हूँ कि ये बन पाएगा या नहीं। साथ ही साथ मुझे जो सॉफ्टवेयर का जो लीडर है, टीम लीड है, उसके साथ बैठना है कि क्या सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ से जस्ट एक सबमिट करूँ तो उसको एसएमएस चला जाए। यस, बिल्कुल पॉसिबल है। किसी ने तो सोचा होगा तब जाके आज हमको सर्विस वगैरह मिल रही है। एसएमएस मिल रहा है, मेल मिल रहा है, फॉरगॉट पासवर्ड करने से ओटीपी आ रहा है। ओटीपी की एक लिमिटेशन है कि एक बार डाल दिया तो फिर वो दूसरी बार यूज नहीं होगा, उसकी कुछ टाइम लिमिट है। तो किसी ने तो ये सोचा होगा। तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा मैकेनिकल, ये मिक्सचर बन के एक अच्छी प्रोडक्ट बन सकती है। फिर वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन्होंने जो भी बनाया उसको टेस्टिंग कौन करेगा? तो एज अ गुड, मतलब फर्स्ट लेवल का टेस्टिंग सॉफ्टवेयर वाला कर लेगा, लेकिन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे भी उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा को डाल के। और एक बार वो डेटा डाल गया फिर ट्रेनिंग आती है आफ्टर मार्केट में, मुझे ट्रेन भी तो करना है अपने रिसोर्सेज को। तो उसकी ट्रेनिंग भी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं ही दूंगा। और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो भाई मुझे पता है कि प्रोडक्ट में 15 फीचर ऑलरेडी है, तो उसको सेल भी करना है। मतलब हर एंगल पे हमारा रोल हो सकता है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ ऑटोमोबाइल इंजीनियर, कि ये टूल है इसमें 15 फीचर है। तो सामने वाले को जब मुझे एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में जाता हूँ तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि सर मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट है, उसमें ये 15 फीचर है। उस फीचर्स को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना। तो जो सेल्स वाली स्किल है उसको भी मिक्सअप करके, सेल्स प्लस डोमेन नॉलेज प्लस सॉफ्टवेयर का नॉलेज, कितनी बढ़िया स्किल बनती है। और फिर वो जाके इंडस्ट्री में मतलब उसको कोई बीट नहीं कर सकता, समय के साथ भी नहीं, नॉलेज के साथ भी नहीं। क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम पढ़ा होगा तो उसको सिर्फ अच्छी इंग्लिश आएगी, उसको फीचर्स का, उसको प्रेजेंटेशन का कोई नॉलेज नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ मैं ग्रोन अप होता जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा कमांड बढ़ते ही जाएगा। तो 5 साल के बाद इस पर्टिकुलर डोमेन में मैं एज अ गुड लीडर बन सकता हूँ। जो बिजनेस एनालिस्ट या फंक्शनल एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ये वो वाली स्क्रीन है। ये वाली स्क्रीन तो आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखो कि मुझे डेटा को एनालाइज करना है, डिजाइन भी करना है और डिलीवर भी करना है। मुझे सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत मेथोडोलॉजी का पता होना चाहिए, लैंग्वेज इसका पता होना चाहिए, ये हो सकता है इसका भी पता होना चाहिए, ये नहीं हो सकता इसका भी पता होना चाहिए। या नई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से गैदर करने आना चाहिए कि जब मैं सॉफ्टवेयर टीम के पास जाके लेके जाऊं कि भाई ये डिलीवर करना है तो सॉफ्टवेयर टीम आसानी से उसको समझ पाए।
तो एक डॉक्यूमेंट होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, एफआरडी डॉक्यूमेंट, तो उसको बनाते भी आना चाहिए। तो क्या क्या स्किल होनी चाहिए, दिस इज द लास्ट स्लाइड, सो लेट्स फोकस ऑन कि क्या क्या स्किल होनी चाहिए। तो भाई मुझे पीपीटी बनाते आना चाहिए, एक्सेल पे डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए, अच्छा वर्ड का कमांड होना चाहिए, फिर कुछ एडिटिंग टूल्स है, ग्राफिक्स एडिटिंग टूल्स, उस पर कमांड हो तो अच्छी बात है, एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इस पे कमांड हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ फ्लो चार्ट के टूल है जैसे एम एस विजियो वगैरह। तो भाई कुछ मुझे प्रोसेस डिज़ाइन करनी है तो मुझे कैसे उसको मैं समझा सकता हूँ, यस नो करके जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं बना सकता हूँ। फिर प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, मल्टीलिंगुअल, कि भाई एज अ गुजराती ये टूल तो मैं बेचने जा रहा हूँ साउथ में, तो फिर साउथ की कुछ लैंग्वेज अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो इंग्लिश तो मस्ट है। या फिर मैं नॉर्थ में जाता हूँ तो हिंदी मस्ट है, क्योंकि वहाँ वालों को इंग्लिश थोड़े टाइम के लिए अच्छी लगती है, फिर आ जाते हैं अपनी हिंदी पे। तो मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, कस्टमर टू द पॉइंट होना चाहिए कि कस्टमर ने ये बोला तो मैं वही स्लाइड दिखाऊं, आजू बाजू का थोड़ा कम दिखाऊं ताकि मैं समय बचा पाऊँ। प्रोजेक्ट प्लानिंग, मुझे सॉफ्टवेयर वालों को भी लीड करना है, ग्राफिक डिजाइनर को भी लीड करना है, मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को भी लीड करना है। तो और साथ में कुछ प्रोजेक्ट बेनिफिट में है या नहीं है, कितना समय जा रहा है, समय ज़्यादा जा रहा है तो फिर मैं क्या एक्शन लूँ। तो ये सारी कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल हो गई। अजाइल फ्रेमवर्क के भाई एक्स बना लिया, अब एक्स प्लस वाई बनाओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनाओ, तो ये अजाइल फ्रेमवर्क। तो इस तरह का मतलब एक क्यूमुलेटिव स्किल है जो कि समय के साथ आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कल से मैं बीए बन गया या गया, लेकिन जहां पे भी जिस भी डोमेन में मैंने शुरुआत की उसका एक बिगर पर्सपेक्टिव अगर लेके मैं चलूँ तो फिर मेरा ये वाला डेटा या ये वाला रोल मैं परफॉर्म करूं। और आई थिंक डिटेल में इस वेबिनार के बाद जब डिटेल में आप सोचोगे तो आपको एक भी रीजन नहीं मिलेगा कि इस डोमेन को या इस पर्टिकुलर स्किल को कोई बीट कर पाएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल वाला सिर्फ ऑटोमोबाइल पढ़ के आएगा, सॉफ्टवेयर वाला सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ के आएगा। लेकिन यहाँ समय के साथ साथ मैं ऑटोमोबाइल के बिजनेस के डोमेन के जो कोर कंसेप्ट है उसको भी स्टडी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी वाइज डॉट नेट जावा इसका भी नॉलेज ले रहा हूँ, सर्वर क्या होता है, एक वेबसाइट कैसे चलती है, वेब डिजाइनिंग के जो कंसेप्ट होते हैं उसको भी स्टडी कर रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइन, एक बेटर यूआई यूजर इंटरफेस बेटर कैसे हो सकता है, किस तरह से मैं अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर सकता हूँ एस्थेटिक लुक वाइज या कोडिंग वाइज, कितना फास्ट बना सकता हूँ। तो ये सारा नॉलेज धीरे धीरे आपको आता जाएगा और समय के साथ साथ आप और बेहतर बनते जाओगे। दिस इज व्हाट टुडे सेशन, आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को आपके सामने मैं रख पाऊँ, और आई होप कि मैंने आपको एक फ्यूचर में ये भी एक करियर का पाथ हो सकता है, इस पर्टिकुलर जो एजेंडा था इसको डिलीवर करने में मैंने जो कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी, आई होप सो। तो आई एम, समय तो लिमिटेड है, 3 मिनट बचे हैं, तो आज सॉरी Q&A सेशन नहीं हो पाया, लेकिन यस यू कैन कॉन्टेक्ट द कोऑर्डिनेटर मिस्टर विशाल मकवाना। अगर आपको लगता है तो हम नेक्स्ट सेशन सिर्फ Q&A स्पेसिफिक रख सकते हैं और फिर उसमें और भी डिटेल आउट करेंगे। लेकिन आप 4 टूल नोट कर लो, PLM, ERP, CRM, DMS, ये 4 टूल है, इसमें से किस टूल पे मैं अपना बेस्ट कमांड कर सकता हूँ ये आपने डिसाइड करना है। और सो लास्ट मिनट है, सो आई अगेन थैंक यू to Parul University to giving me the opportunity to present this subject matter knowledge, and I hope I tried my best to deliver the overall knowledge, overall concept where I can create my career path in automotive IT segment. So thank you very much. Vishal, do you have any query? No, sir. Thanks. A very nice session. I enjoy very much. It is very much fast, but yeah, definitely because ये सारे इंडिविजुअल टूल पे 2-2 3-3 घंटे के सेशन भी हो सकते हैं। एंड अगेन मैं इन सारे टूल का सब्जेक्ट मैटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल पब्लिकेशंस में हूँ,
जैसे मैंने शुरुआत में ही मेरी इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं पार्ट्स बिजनेस को देखता हूँ, लेकिन साथ ही साथ समय के साथ साथ मैं इन टूल्स को समझते गया, तो मुझे लगा कि अगर एज अ स्टूडेंट अगर मुझे अपने करियर के स्टार्ट में अगर पता होता कि मैं ये टूल है मार्केट में और इस टूल में मैं अपना करियर बना सकता हूँ, तो शायद किसी अभी मैं इसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपने डीएमएस की स्लाइड देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि मैनुअल्स वगैरह, और मुझे थोड़ा सर्विस का एक्सपीरियंस है, तो मैं पूरा आगे चल के डीएमएस का एक फंक्शनल कंसल्टेंट बन सकता हूँ। और मुझे जो टूल अदर टूल्स के नॉलेज है, तो थोड़े बहुत ये टूल्स के नॉलेज है, लेकिन अगर उतना ही नॉलेज इंट्रोडक्टरी लेवल का नॉलेज फंक्शनल कंसल्टेंट बनने के काम नहीं आता, इसलिए पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं करता। डेफिनेटली मेरा टारगेट फोर्थ पे है। एंड अगेन ये सेशन खत्म हो रहा है, तो आप स्टूडेंट से फीडबैक लेना, टीम से फीडबैक यस, लेना। मिल जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। करते बात। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय। बाय, थैंक यू।